For a team that started with 3 wins in a row, it's been a hard battle for Sindh, with 4 losses in their next 6 matches. Shan Masood's half-century was one of the few bright spots for them. Hit that away for 6 runs, and it's going to be an extra penalty. Even as they were thrashed by Khyber Pakhtunkhwa in their last game. Oh, he set that superbly, and that's gone for 6. They will be set up against a de-spirited Balochistan, who lost to Central Punjab yesterday. A brutal assault by Wahab Riaz dashed Balochistan's hopes of a semi-final berth. That is a beauty. That's another wonderful shot. That is 6, number 4. A consolation win today would mean they will avoid the embarrassment of finishing last. Hello and welcome to the coverage of today's play. Balochistan is playing GFS Sindh in match 29 here at the Gaddafi Stadium. The points table now are pretty much sorted. We've got the 4 semi-finalists in front of us. It's all about where they finish after today. All right, starting our coverage and of course passing our condolences to Anwar Ali. His mother passed away last night, so from our crew, from Mike and myself, we're just very sorry for your loss. Now talking about the weather here, it's a bit of breeze, so that's a good sign. We can stand here a little longer than we usually do. I'm going to welcome Mike. Mike, it's quite tough on the players with the biosecure bubbles and all these things that happen around it. Yeah, it is, you know, and obviously the disappointment of Anwar Ali's mother passing is going to hit the teams hard as well. I mean, that's something, unfortunately, that it happens, and it's the guys have got to front up and play again, so it's a tough one. I'm looking today with Balochistan going down in those last 2 games, in really tight games, to see how they front up today, because I think, you know, they were really disappointed 2 nights ago. They were seriously disappointed last night. I just wonder if that bubble has popped for them also, because going down in those sort of styles. And that means that Sindh have got a real opportunity, I think, and if they played really well in this first game, they will finish top if they win by a good margin. So that's what I'm tipping. I reckon they'll play well, win, finish top of the table. We'll have to wait and see what happens in the second game today. But I reckon that might be a tight one as well. I reckon KP might win that one also, which means Sindh might still finish top at the end, and then it's them versus 4. So there's still plenty to go with, but I'm worried about Balochistan and their frame of mind today. When we talk about different stages of the tournament, it's a long tournament, 33 matches. Must be tough for GFS Sindh now to rearrange their middle order. First, Sarfaraz left, now Anwar Ali's absence is going to cost them, and 3 captains. Yeah, 3 captains doesn't make it easy. I mean, you get used to a captain and then suddenly he's gone. I mean, they didn't expect Sarfaraz to go, and suddenly that happened. And good luck to Sarfaraz. I think it's actually a very good choice. I do think for the wickets they're going to get, particularly in some of the regions up in the UAE, and I think that in Sharjah in particular, when that track's turning and not big totals and he's sweeping both sides and that sort of stuff. So I think that's a good choice. But yeah, you've got to adjust to different captains, and just when you're getting used to one, another one comes in, and obviously now another captain, but obviously the captaincy side of things is an important role. It's the most important role T20 cricket, and you've got to show the rest of the guys you're in control, even when things are not in control. You've got to be nice and cool, calm and collected out there, so that the team are looking at you and feeling good about things. All right. Well, Marina Iqbal was out there earlier, and let's have a look at the pitch. Last day for the round matches here at Lahore leg. 5 wickets have been prepared by the groundsman, and this is the 5th one, and I believe it's a fresh wicket and one of the best. Some breeze is going on, so it will help bowlers as well as batters. Let's have a closer look at the strip. If you look, there's a lot of grass here, some live grass, so seamers, beware of it. It's a hard track, so batters will enjoy their bowling. But one thing I want to point out, on both ends, as we have some left-handers on both sides, there are some certain grass patches. I want the bowlers to exploit that. If you look at it, stand at the crease, probably around good length, just get closer to it. There's a good cluster of grass here. So I think that bowlers would like to pitch in that area. It won't change in either innings, so it's nullified the fact of any priority to bowlers or batters. But again, just come, enjoy your cricket and play on your strengths. Well, the wind blowing might have its effect on the game, which is under lights. But right now, how do you see this pitch? Again,
play it easy, see the power play off, and then go for the runs? Yeah, Balochistan were disappointing in the power play yesterday. They only scored, or they were low in the first 6 overs. At the 10-over mark, they only scored 56 runs. I mean, that's really low. Actually had a quick chat to the ground staff before we went to air, just to find out exactly what time they take the covers off or any carpet that they play on. That they put on the pitches to keep them away from the sun yesterday and the covers. And they come off at 7 o'clock in the morning. So what do we got? About mid-30s today, low humidity, so that's okay. But that breeze is also going to just dry things a little bit as well. I just want to hope that this breeze stays for later on as well so we don't get any dew, because that's what happened last night with the breeze. So fingers crossed for that. But the power plays are always important. I'm a big grap also for 70 runs on the board, couple of wickets down, no more than that after 10 overs. All right. Bazid Khan is out there with the 2 new captains. Matchbox 29, and it's a warm afternoon. We're ready with the toss. New captains, Shan Masood, Sohail Akhtar, Mohammad Javed, match referee. I believe Shan has the coin. Heads is the call. Tail. And you have to... Referee's done a good job. It's tail, so Sohail toss. आप टॉस जीते हो, शान टॉस जीते हो, क्या करोगे, क्यों? बॉलिंग करेंगे, बस मैचेस खेले हुए हैं इधर दिन के और देखा है कि स्लाइट एडवांटेज रही है जो साइड पहले बॉलिंग कर रही है। सोहेल, आखिरी मैच है आपकी टीम में, कप्तान भी चेंज हुए हैं, लेकिन मोटिवेशन तो रहेगी, टीवी वाला मैच है, इम्पोर्टेंट मैच है। हाँ जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छा फिनिश करें। और ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी क्लोज मैचेस हम खेले हैं, अच्छी एफर्ट देखने को मिली टीम में, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज का मैच भी अच्छी एफर्ट्स के साथ खेलें। शान, ये बताएं, ऑब्वियसली आपकी टीम क्वालिफाई कर गई है, बट अगर आप बड़े मार्जिन से मैच जीते हैं तो आप वो नंबर 1, नंबर 2 स्लॉट पे आ सकते हैं। अब देखें, आई डोंट थिंक जितनी इवनली कंटेस्टेड टीम्स हैं वो मैटर करेगा। ये हो सकता है कि जो टाइम ऑफ डे आप दिन का मैच खेलेंगे रात को, उसमें थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है कुछ टीम्स को। तो हमारा काम है मैच खेलें, हम थोड़ी सी कॉम्बिनेशंस भी ट्राई करेंगे, थोड़ी चेंजेस की हैं और देखेंगे कि हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है सेमीफाइनल के लिए। सोहेल, आपकी टीम में भी चेंजेस होंगे, आप कैप्टन बने, आज ओपन करेंगे कि नहीं? देखते हैं, अभी डिसाइड करते हैं, क्योंकि ओपनर्स काफ़ी हैं हमारी टीम में, तो देखते हैं कि जिस हिसाब से कम्बिनेशन सेट हो उस तरह करें। ओवरऑल अगर आप अपने टूर्नामेंट को देखें तो किस चीज़ में कमी आई? आपने बताया मैच क्लोज हुए हैं, लेकिन कोई चीज़ मिसिंग थी? देखें, जो मैंने फ़ील किया है कि जो फिनिशिंग टच था, चाहे वो आप बॉलिंग में कहें या बैटिंग में, तो वो थोड़ा सा नहीं दे सके हम। बाकी बॉलर्स ने काफ़ी मेहनत की है, और जिस तरह की मैं समझता हूँ कि ड्यू पड़ रही थी और उसको मद्देनज़र रखते हुए बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। तो बाकी ओवरऑल देखें अगर आप, तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है बलूचिस्तान की टीम, होपफुली आज भी अच्छा फिनिश करेंगे हम। शान, आपकी टीम में कोई चेंजेस? 5 चेंजेस हैं हमारी। याद रहेंगे? अनवर अली अनफॉर्चुनेटली नहीं है, उनकी मदर की डेथ हुई है। मीर हमज़ा आया है, हसनैन वापस आया है, अफजल विकेट कीपिंग करेंगे, और चले काफ़ी है, इस वक्त बाद में होगा। आपकी टीम में कोई चेंजेस? जी, चेंजिंग हैं, हैरी भाई और इमाम ट्रेनिंग में थोड़ा सा उनके हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम हुआ है, और अहमद भट्ट भी नहीं खेल रहे, वो कोशिश की है जो यंगस्टर्स हैं उनको चांस दिया। So the news out here from the center is that GFS Sindh have won the toss and have been elected to bowl. No surprises, Sindh wants to bowl first. Lots of changes there, and that's expected because everyone was going to get a chance because it's the last game for Balochistan. And lots of changes for Sindh as well. Their middle order is a little weaker than it was usually. A quick one. Well, these sides have qualified for the semis. It's all about who wants to play the afternoon game, who wants to play the night game. It does, but if I could just add one thing about this, Balochistan are the only side that haven't won batting first. So that's a problem for them. And as I said before, I think Sindh are going to play well, win the game, enough to go top of the table. All right. Well, here we are. It's a match between a side that can't qualify and the other one is looking to find a place in the top 4 of their preference. Let's see what happens on the other side of the break.
कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आज आखिरी दिन है राउंड के मैचेस का और बलूचिस्तान और सिंध की टीमें मद्दे मुकाबिल आ रही हैं। और पहली इत्तला ये है कि सिंध के कायम मकाम कप्तान शान मसूद ने टॉस जीता है और उन्होंने इस सब्जाजार पर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने पिछली 2 रातों में अपना लोहा मनवाया, आज फिर उनको बैटिंग करने का मौका मिला है। 4 निफ्ट सेंचुरियां और 1 सेंचुरी बनाए हुए हैं। स्ट्राइक रेट इनका बेहतर हुआ है इस टूर्नामेंट के साथ साथ, खासतौर पर लाहौर आकर। अब्दुल वाहिद पंगलजई ये रावलपिंडी में बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन अभी तक यहाँ आने के बाद न सिर्फ जख्मी हुए बल्कि वो तासुर कायम नहीं कर सके हैं जिसकी कि इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं। हल्की हल्की हवा चल रही है और ऐसे में मीर हमजा पहला ओवर करने की तैयारी में होंगे, जो कि बाएं हाथ से स्विंग बॉलिंग करते हैं। एक और स्विंगर हैं इस टीम में, सुहेल खान और मोहम्मद हसन की भी वापसी हुई है। तो 3 ऐसे बॉलर हैं जो गेंद को स्विंग कर सकते हैं और ये मुख्तलिफ तर्ज के बॉलर हैं। जो चौथे इस टीम में पेसर हैं रुमान रईस। आज भी गर्म मौसम है लाहौर में, खासी गहमा गहमी है इस टूर्नामेंट की बाबत। शायान शान इंतजाम किए गए हैं नेशनल T20 कप के। आसिफ याकूब अंपायरिंग कर रहे हैं इस वक्त FC कॉलेज एंड पर। शर्जील खान स्लिप में हैं। इसके अलावा पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ साइड में। जब पहला मैच होता है, खासतौर पर ये जो सेंट्रल पिचेस हैं, इनमें बाउंस देखने को मिलता है। नई गेंद पर मरीना इकबाल। अच्छी सॉलिड विकेट है और मेरा ख्याल है कि ये अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट होगी। इस पे घास भी काफ़ी ज़्यादा है, सीमस को मदद मिलेगी। हार्ड विकेट है, हार्ड डेक है और पिछले मैच में भी हमने देखा था कि बहुत ही अच्छा बैटिंग ट्रैक था। ये भी कुछ उसी तरह मिलता जुलता है। रंगत भी इसकी काफ़ी सफ़ेद है, तो ख़ास नज़र नहीं आ रहा था कि ग्रिप होगा बॉल या मॉइस्चर थोड़ा सा होगा। ज़्यादा रफ्तार नहीं थी। मोहम्मद अफजल विकेट कीपर हैं, तीसरे विकेट कीपर, क्योंकि पिच को आमतौर पर मैच डे पे ही पानी देने के बाद रोल किया जाता है, तो शुरू में कभी कभार गेंदें रुक कर आती हैं, बैट्समैन को संभल कर खेलना पड़ता है। बड़ी अच्छी टेक्निक है, गेंद को अपने करीब आने देते हैं। अब्दुल्ला शफीक, इनके बल्ले और पैड के दरमियान गैप ना होने के बराबर होता है। मुश्किल शॉट्स भी आसानी से खेल लेते हैं। बाउंड्रीज के लिए इनको खतरा मोल लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये इनकी कामयाबी का राज है कि नज़र रखते हैं, अपनी बॉडी के करीब खेलते हैं। अच्छा कंट्रोल है इनको, बैट का फेस ओपन भी कर लेते हैं, टाइम बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए इन्हें बआसानी बाउंड्रीज मिलती हैं। जो भी गैप में शॉट जाती है वो चौका ही होता है। इसे क्या वाइड जानकर इन्होंने जाने दिया। गेंद की रफ्तार ज्यादा नहीं थी। ये देखिए, ये रातों को ये बड़ी दिलकश बैटिंग करते हुए नजर आए। दोनों जानिब स्ट्रोक खेलते हैं, जिस तरफ गेंद आए उसी तरफ खेलना पसंद करते हैं और ये शाहाना अंदाज था इनका। ये अब्दुल्ला शफीक जो हैं स्पिनर पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। बड़े बड़े छक्के भी लगाए हैं इन्होंने, लेंथ से भी छक्का लगा सकते हैं। जल्दी करनी पड़ी, थ्रो विकेटों पर नहीं लगी, वरना बंगल सही को जाना पड़ता। इसी एंड पर वो आगे पवेलियन की तरफ ही चलते जाते अगर थ्रो लग जाती। थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी और अगर लग जाती स्टंप्स पे तो ये बगैर कोई बॉल फेस किए वापस जाते। देखें, अच्छी फील्डिंग थी और बहुत दूर थे। खुशकिस्मत रहे इस बार। ये मोहम्मद तहा थे, वो अच्छे फील्डर हैं। गेंद बर वक्त उनके हाथ लग भी गई थी, स्टंप्स पर नहीं आई। देखिए, ऐसा होता है क्योंकि पहली 2 गेंदों पर रन नहीं आया था, इससे बैट्समैन मजबूर हुए इस तरह
कि गलती करने पे। इस तरह के रन लेने पड़ेंगे और दोनों काफ़ी दफ़ा ओपन कर चुके हैं बलूचिस्तान के लिए, तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो होती है। और मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला का जो रिएक्शन था वो यही था कि क्यों नहीं फ़ौरन मेरी कॉल पे रिस्पॉन्ड किया। अब्दुल्ला शफीक की आप बात कर रहे थे कि कदमों का इस्तेमाल करते हैं, और उनका एक सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये कि बैलेंस रहता है उनका बहुत अच्छा क्रीज पे, और जब कदमों का इस्तेमाल करते हैं तो हेड स्टिल रहता है, इसीलिए बासानी बड़ी शॉट्स भी मार सकते हैं बाउंड्री के ऊपर। यार नजरों में देखिए कितना ज्यादा इन्हमाक है, बहुत तवज्जो है। देखिए ये गेंद पैड पर लगी, क्या ये बल्ले से भी लगी थी? सिंध की जानिब से अपील पुरजोर हुई थी, लेकिन आसिफ याकूब कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रहे थे इसमें। चाहिए इन स्विंग करने की कोशिश की थी, और ये बज़ाहिर इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि बल्ला लगा है यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक ने, और अंपायर का भी यही ख्याल था कि गेंद जिस तरह ये मूव हो रही थी इस पैड पे तो बिल्कुल सामने लगी थी। ओह अच्छी डिलीवरी, दोनों तरफ मूव कर रहे हैं इस वक्त गेंद को मीर हमजा। आला बॉलिंग उनकी जानिब से, पहले ओवर में सिर्फ 4 रन बनाए बलोचिस्तान ने। ये आप शॉट में ही ना, आप शॉट में ही ना, मीरू थर्ड मैन चले जाएगा, मीरू वहाँ चले जाएगा थर्ड मैन। मोहम्मद इब्राहिम आई टीम में शामिल हैं बलूचिस्तान की, जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। नजीबुल्ला ये फास्ट बॉलर हैं, इनकी वापसी हुई है। मोहम्मद मोहसिन जो लेग स्पिनर हैं वो भी आज लाइनअप का हिस्सा हैं। सिंध की टीम में बेबहा तब्दीलियां हैं। हसन मोहसिन खेल रहे हैं, मोहम्मद अफजल विकेट कीपर, मोहम्मद ताहा हसैन की वापसी हुई है, और मीर हमजा की। बिल्कुल बदली बदली टीम लग रही है सिंध की। रुमान रईस बॉलिंग का आगाज कर रहे हैं इस वक्त पवेलियन एंड से। ये हैट्रिक की थी, आपको याद होगा इन 2 दिन पहले रुमान रईस ने इसी मैदान पर बड़ी शानदार बॉलिंग की। नई गेंद करने पे भी इनको महारत है, गेंद को स्विंग कर सकते हैं, अच्छा यॉर्कर करते हैं नई गेंद पर भी, पुरानी गेंद पे भी ज़्यादा स्विंग होगी, और बैक ऑफ द हैंड जो स्लो डिलीवरी करते हैं वो बहुत आला। और लाहौर जो अपने खाने पीने की अशिया के लिए दुनिया भर में शोहरत रखता है, ये 24/7 आपको ये सहूलत मिलेगी। आप भाटी, गवाल मंडी, निस्बत रोड के इलाकों में चले जाइए और अपनी प्यास बुझाइए, गर्मी दूर कीजिए। हमारे स्टैटिस्टिशियन मजहर अरशद इन इलाकों में बहुत शौक से जानते हैं, इन गलियों में। मरीना आप भी जा चुकी होंगी गवाल मंडी? लाहौर में हो और लाहौरी और ऐसे इलाकों में ना जाएं तो फिर तो लाहौर में रहने का नुकसान ही है। बहुत दफ़ा यहाँ पे खा चुके हैं, बचपन में जाते थे, अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ के जायके लाजवाब हैं। जी हाँ, और अगर आपने T20 क्रिकेट खेलनी है और गेंदों को स्ट्राइक करना, दूर दूर फेंकना है, तो फिर जाना चाहिए आपको गवाल मंडी। ये पहलवानों का भी इलाका है, इसी में गामा पहलवान, रुस्तुम जमान, उनके अलावा
आपको याद होगा झारा, असम झारा, अनोखी अनोखी की जिनसे कुश्ती हुई थी यहाँ कजाफी स्टेडियम में। देखिए यही वो मैदान था जहाँ 70 की दहाई में वो मशहूर ज़माना कुश्ती हुई थी असम झारा और अनोखी की, जिसमें झारा जीत गए थे। आज भी उसकी मिसालें दी जाती हैं आने वाली नस्लों को झारा की ताकत के मुतालिक। अभी भी रुस्म पाकिस्तान दंगल होता है, लेकिन वो रुस्तम वो ज़माने चले गए। बहुत कुछ हुआ है यहाँ कजाफी स्टेडियम की इस पिच पर। सिर्फ क्रिकेट नहीं हुई, यहाँ एक ज़माने में कुश्तियों के मुकाबले होते थे, यहाँ हॉकी के टूर्नामेंट्स होते थे। हॉकी की पहली चैंपियंस ट्रॉफी हुई 1968 में। यहाँ हॉकी का एक 4 मुल्की टूर्नामेंट खेला गया था, जब पाकिस्तान की टीम मैक्सिको ओलंपिक्स में जीतने के बाद वतन वापस लौटी थी। तो इसके अलावा यहाँ जब नेशनल गेम्स होती थी लाहौर में, तो न सिर्फ ये कि मुख्तलिफ खेलों के यहाँ मुकाबले होते थे, बल्कि इफ्तिताही और जो इख्तितामी तकरीब का मरकज़ था वो यही मैदान होता था। लेकिन अब इसके अतराफ़ में भी बहुत कुछ वजूद में आ चुका है। ये नेशनल हॉकी स्टेडियम है जो अब बिल्कुल सूना सूना वीरान लगता है। और अच्छा पुल शॉट खेला इस बार मंगल सही ने। ये शॉट मिली और एंगल के खिलाफ गए, लेकिन पूरी हुनरवड़ी से खेला। अच्छा इख्तिताम किया इस ओवर का मंगल सही ने। 2 के बाद 9 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है। अब्दुल्ला शफीक 1 पर हैं, मंगल सही ने 5 रन बनाए हैं। और आज एक सवाल ये भी है कि सुहेल अख्तर किस नंबर पर खेलने के लिए आएंगे। बैटिंग ऑर्डर खासा बदल गया है, क्योंकि इमामुल हक नहीं खेल रहे। पहले 1 डाउन यही आ रहे थे। और ये पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस हो रही है एलसीसी ग्राउंड पर। अच्छी बॉलिंग की अभी तक मीर हमजा ने, और वर्ल्ड कप बस कुछ ही दिनों बाद वो स्टेज सजने को है और उसकी तैयारियां भरपूर हो रही हैं यहाँ पे एलसीसी में। जहाँ खासी गहमा गहमी है, यहाँ पर मीडिया के अफराद भी मौजूद हैं। अभी कुछ दिन पहले जब हम आ रहे थे कजाफी स्टेडियम की तरफ, पाकिस्तान टीम के जो गैर मुल्की बॉलिंग कोच हैं वर्निन फलैंडर, उनको भी देखा जा सकता है। इसके अलावा सकलैन मुश्ताक, बंगलजई का कंट्रोल कितना है शॉट पे, ये इस शॉट से अंदाजा लगा जा सकता है। राइज कर रहा था बॉल लास्ट मोमेंट तक, लेकिन नजर रखी और जहां पे गैप खाली मिला वहां पे बाउंड्री के लिए डाला। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है। नॉर्मली इसको डक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टॉप ऑफ बाउंस पहुंच जाएं फिर ये शॉट कंट्रोल से खेली जा सकती है। यहाँ ये दोनों ओपनर आए हैं, बंगलजई और अब्दुल्ला शफीक। पाकिस्तान टीम जो है ये वर्ल्ड कप में इसके 2 ओपनर्स कौन से होंगे? मरीना ये अच्छा सिंगल पिंच किया, पहुंच गए थे अपनी क्रीज में। इस बार अब्दुल्ला शफीक। अभी शुरू में तो पहला जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का ही है। मेरे ख्याल है जिस बखूबी तरीके से वो दोनों अपना किरदार निभा रहे हैं, अच्छा सेटल हो गए उस ओपनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो उसी के साथ जाना चाहिए। आगे डिपेंड करता है कि पिचेस किस तरह की मिलती हैं। ऑपोजिशन के अगेंस्ट भी देखना पड़ेगा कि कौन सी ऑपोजिशन के अगेंस्ट आप कॉम्बिनेशंस डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। और ये जो दाएं तरफ वाला नेट है, इस पे शादाब खान बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।
ये मोहम्मद नवाज से इसी नेट में, लेकिन यहाँ पर फास्ट बॉलर हैं बाएं हाथ के दोनों एंड्स पर, जो इस वक्त नपीतुली बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए दाएं तरफ वाला नेट है, इसमें फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, और बाएं तरफ वाला जो नेट था इस पे स्पिनर्स से प्रैक्टिस कराई जा रही है बैट्समैन को। अच्छी क्रिकेट हो रही है। अब्दुल्ला शफीक और बंगल से इन्होंने अंदाजा लगाया कि इतने ओपनली बाउंड्रीज नहीं मिल रही, तो अब स्ट्राइक रोटेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा पुल शॉट, 4 रन्स, फील्डर थे स्क्वायर के सामने, लेकिन प्लेसमेंट बड़ी उम्दा। मंगल सही ने इस गेंद को बिल्कुल अपनी बॉडी के अंदर लिया और उसके बाद इसे दिलकश तरीके से डिस्पैच किया। लाइन मिस कर दी इस बार, लेग साइड पे थी इसलिए आसानी मार सके। फाइन खेला इसको, जानते थे कि फील्डर कहाँ मौजूद है। खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया, रोल किया खिलाड़ियाँ जी, ये अंदाजा इनको है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्विंग भी कर रहे हैं, कहाँ फिनिश हो रहा है आपका स्विंग, वो काफी कुछ डिटरमिन करता है। इन दोनों बैट्समैन में अच्छी टेक्निक के अलावा एक मुमासलत ये है कि पुल शॉट अच्छा खेलते हैं। अच्छा ऑन ड्राइव, खासी तगोदा करना पड़ी रुमान रईस को। दूसरा रन लेने के मुतालिक सोचा था, लेकिन जल्दी संभल गए। अच्छी क्रिकेट, काबिले दीद रुमान रईस। 3 ओवर्स के बाद 17 पर कोई विकेट नहीं। बलूचिस्तान की क़यादत आज सिपुर्द की गई है सुहेल अख्तर के, जो कि PSL फेम है, लाहौर कलंदर्स की कप्तानी करते हैं, और सिंध के कप्तान भी बदल गए। मोहम्मद हुसैन ने पहली गेंद सही लेंथ पर गिराई। यहाँ पर शान मसूद क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सरफराज अहमद नहीं थे, अनवर अली नायब कप्तान थे, उन्होंने कल के मैच में कप्तानी की थी, लेकिन आज बड़ी अफसोसनाक खबर मिली कि अनवर अली की वालदा का इंतकाल हो गया है और उन्हें ज़ाहिर है कि टीम से अलहदगी इख्तियार करना पड़ी। हमारी दुआएं अनवर अली और उनके ख़ानदान के साथ हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी मुश्किल लम्हा होता है और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी इस चीज़ से संभल सके। ये लाइन अच्छी नहीं थी, सिर्फ डिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि अबरार अहमद ही थे जो फाइन लेग पर दायरे के अंदर थे। ये टपाल टी मोमेंट है। ऐसे कई लम्हात आते हैं दिन में। आप ओपनर्स की बात कर रहे थे कि ये अच्छा पुल शॉट खेलते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है, ओपनर के पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल ज़रूर होना चाहिए। ड्राइव आनी चाहिए, कट और पुल लाजमी आना चाहिए। स्मैश किया सामने की जानिब और स्टंप्स ने रास्ता रोका। ये अभी जो साहब स्क्रीन पर नजर आए थे बासित अली, ये बहुत अच्छा पुल शॉट खेलते थे। ये भी वेस्ट इंडीज़ गए थे 1992-93 की सीरीज़ में, जिस ज़माने में वेस्ट इंडीज़ बड़ी ताकतवर टीम थी और 4-4 फास्ट बॉलर खेलते थे, तो इन्हें बड़ी अच्छी बैटिंग की थी उस पूरे दौरे में। दौरे की दरियाफ्त थे बासित अली। ऑन पे भी बहुत अच्छा खेलते हैं और मुझे याद है कि इनको मेरी फ्लिक शॉट बहुत पसंद थी, अक्सर उस पर काफ़ी तारीफ मुझे सुनने को मिलती थी। हेड कोच भी रहे आपके साथ पाकिस्तान टीम के? जी बिल्कुल रहे, बिल्कुल। अच्छा शॉट खेला, 4 रन्स इस बार बिल्कुल खातिर में नहीं लाए हसनैन, और उनकी रफ्तार को सामने आकर खेलने में कामयाब हुए। मिड ऑन को आसानी से बाईपास किया बंगल सही ने। बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया था कि इस शॉट को कहाँ खेलना है और पूरे कंट्रोल के साथ खेला था।
बॉटम हैंड इस्तेमाल किया और अच्छी लेंथ पिक की थी, अच्छा गैप पिक किया 4 रन्स के लिए। हसनैन फर्स्ट चेंज पे आए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी, अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो कुछ खास अच्छी नहीं रही है इनकी। जहाँ इनको यहाँ पर बॉलिंग जाहिर है कि ये कर रहे होते। इस बार गेंद पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई, लेकिन खासी तौक़ुत करना पड़ेगी। मोहम्मद तहा आए और गेंद को उन्होंने रोक लिया। 2 रन बने। अच्छी फील्डिंग, बड़ी तेज रफ्तारी के साथ गए थे मोहम्मद तहा, उन्होंने यकीनी चौका बचाया। अच्छी फील्डिंग है और इसकी ज़रूरत भी है। फिर काफ़ी शॉर्ट बॉल दे दिया था इस विकेट पे, तो ऐसी बॉल्स पे रन्स पड़ेंगे आपको। थोड़ा सा जल्दी रोल कर गए थे और ये देखिए तहा की एफर्ट, 100% कमिटमेंट थी ये चौका बचाने के लिए। ये अच्छे फील्डर हैं दोनों ही, मोहम्मद तहा और हसन मोहसिन, जिनका आज इजाफा किया गया है सिंध की टीम में। हसन मोहसिन इस वक्त पॉइंट पर हैं, सऊद शकील नहीं खेल रहे। इस ओवर में हसनैन ने सिर्फ 6 रन दिए 4 ओवर्स के बाद, किसी विकेट के नुकसान के बगैर 23। So going at just under the 6 mark at this stage, the Pakistan squad hard at work. Nice to see them out there in the sunshine and putting in some hard yards. Vernon Philander will be there somewhere, working with the bowlers. He arrived a couple of days ago, so we've done a bit of chatting to them. Good to see Mohammed Hasnain, by the way, fronting up again today. So that's, I mean, just an emotional roller coaster for him, being selected in the squad not so long ago, and then from the squad to suddenly being left out. So good on him for fronting up and running in and doing a job for Sindh today, GFS Sindh. He'll be determined. He'll be determined to prove some people wrong, and he'll want to make an impact. He's just a youngster still. Backing away, just over the top of covers, and that's square, I should say, and that's gone for 4. And the other guy who will be determined is Abdullah Shafiq. He is in a rich vein of form. Has been out of cricket. Well, I say out of cricket. He's been traveling with the Pakistan team and not been able to get much game time. But right now he's making an impact. He's making people notice. Obviously helps. He's a player who times the ball. Over the top. Coming back for 2 more. So we're halfway through that 5th over. That batting power play again is on the slow side. It's been a problem for them actually throughout the entire tournament. That's why they've ended up down the bottom. Balochistan, only the one game where they've really fired up. Abdullah Shafiq 73 and 60 in the previous 2 games. And this is the opportunity now, last opportunity for him to showcase the way that he plays. He's taken the eye of everyone. Oh, slow one, just chipped over. Nice, Baz. Just about caused his downfall then.
pumping up his tyres. And back of the hand, slow one. Trying to turn it to the leg side. Nicely placed though, just chipped it over the top. He was in the Central Punjab lineup initially and couldn't get a game, and that in itself is quite remarkable, I suppose. It was the loan system that only allowed him to get a run. And since then, he's been terrific. Nice strong shot. 7 off that over, 5 gone, 30 for none. Just a reference point looking at that. I'm not going to even call it a Manhattan, actually. What am I going to call that? A Bloemfontein, maybe? I don't know. 30 for none at the moment. 5 overs gone. Yesterday, they only scored 56 runs in 10 overs. And that didn't put them in the hot spot, that's for sure. To see Ramon Race having quite a bit to say to Hasnain. It's really important, I think, with what he's been through, and I just touched on it, but he would have been absolutely shattered. But Ramon Race is out there having a nice chat to him and just making sure he's up there and knows what he's doing and trying to help him as much as possible. There is protection out there. And sometimes, Mikey, when you're in that sort of emotional place where you've been dropped and all that, the best thing is to actually get onto the park and play and to do what you do every day. So Hasnain now the opportunity to get back playing ways. Yes, he'll be disappointed, but this is what he knows how to do, and this is what Bangazai knows how to do. Shot ball dismissed from his presence. My goodness, that's a good shot. Listen to the crack of that right off the bat. Beautifully played. Well in front of square on the leg side. That's always a good indication of how early he's picked up the length when he can play it in that region as opposed to on square or just behind. Looks like he's teeing Hasnain up here. He just needs to be a little bit careful, of course. They do need to step on the gas, though. That's what they do need to do. They've got to post a good total. What about our Osaka question of the day? What have we got today? Who has played the most number of one-day internationals in Pakistan cricket? Answer this question on www.fb.com/osaka.batteries and get a chance to win exciting prizes. Who has played the most number? Coming to the end of the power play, and they're going at almost a run of all. That's why you see a bit of frustration. Again, quite a bit of a chat from Ramon Race. This last delivery, there's his speed. Second ball hit 149. All of them are quick. Changed down on the pace with that one. He waited for it, I think, and just hit it back over the top. 125 k's per hour, and to make that adjustment and get that result is outstanding stuff. 10 off the over, 40 for none.
Right, there might be a bit of extra building going on. Yep. Starting to go a couple more stories. In that Manhattan, I should say, there's a reflection of the power play situation. They haven't lost a wicket. That's one thing that's in their bonus. A change of pace, and he was able to wait on it, did Abdullah Shafiq. And again, the balance is perfect. He waits for it and then just hits through. Whenever he's hitting a powerful shot or whenever he's playing an aggressive shot, his balance is so impressive. Abrar Ahmed. Come on, Abi, Abi. Come on. I think that's sliding leg side. Front of the hand, the carom ball, maybe just pitched outside. The carom ball's never a big turner, of course. That's the other thing. Nicely bowled. Very well done, boy. Come on. बढ़िया कर रहा है अभी. देखिए जरा any time है. Come on. Yeah, I think that's fair enough. In my book, it's going down. Looking back at the second, decide against just the one. Now Abdullah Shafiq. He's partial to hitting down the ground, coming out of his crease. So let's see what he does here. The initial call was 2 without really sort of looking up and seeing where it went. That leg side is pretty well protected. There is protection straight as well, so it's difficult for him to go down the ground straight away. There's long off and long on position. Beautiful day today in Lahore. Plenty of blue sky. Just 3 off. It's been a great start from Abrar. Does Abdullah Shafiq now take the option of hitting him downtown? Try and hit it towards that mosque. Takes the more conservative route. And 4 off the over. 7 gone. 44 for none. Lots of changes to Balochistan today, giving some of the younger boys a bit of a run, which means that these 2 guys that are in the yellow stripe at the moment have got a lot of responsibility. They need to make sure they bat, I reckon, a reasonable percentage of these 20 overs. Allow some of the hitters to come in a little bit later to try and step on the gas a bit. Danish Aziz is 25 years of age. He's got a little bit of slow left arm. He's going to be exhibiting. Still got a bit of work to do for the next 3 overs to get where I think they should be, around about the 70 mark, maybe a bit more with no wickets down. Oh, goodness me. That should have been out by miles. A soul down the river. Inside edge, he didn't know where the ball went, and he was just cruising at first, and oh, even if he had just given the ball to Danish Aziz, Abdullah Shafiq was done. I don't know why he didn't actually pick it up anyway. Why couldn't he catch that and take it onto the stumps? Danish Aziz was complaining about the throw, but he was actually jumping. If you have a look at his feet, he's jumping out of the way of the throw rather than concentrating on the keeper not getting the right area. Get it in the right area.
and grab it. It's a little bit awkward to take, but still grab it, and enough time to effect the run out. And it was just an underarm. It wasn't a full throw. It was just lobbed back at him. In actual fact, he jumps after the bell's crossed. Looking for two. Touch and turn. One or two stutters between the wickets from these two batsmen today. Just a little bit of hesitation. So far it's okay though. They're still there. They're still mates. It's a lovely flight. A little bit of work on the ball as well to try and get a bit of turn off the surface. Speeds he's bowling at around about 80 k's per hour. And a single off that last ball only means 5 off the over. They are behind the 8 ball. Balochistan, 8 overs gone, 49 for none. उनचास बगैर किसी नुकसान के 8 ओवर्स के खेल के बाद कोई कामयाबी नहीं हासिल हुई अभी तक सिंध के बॉलर्स को, और बॉलिंग करने का फैसला किया उन्होंने आज। पावर प्ले भी गुजर गया। पचास रन मुकम्मल हो गए 9वें ओवर में। बड़ा स्लो और केयरफुल स्टार्ट है ये। यूजुअली अब हम जो देख रहे हैं टूर्नामेंट में सिलसिला, वहाँ 9वें या मैक्सिमम 11वें ओवर में 100 मुकम्मल कर लेती हैं टीमें पहले बैटिंग करते हुए। और इस हिसाब से ज़रा सी स्लो खेल रहे हैं आज, लेकिन आगे पिकअप कर सकते हैं। विकेटें हाथ में हैं, ये अच्छी बात है। अगर आपके हाथ में विकेटें हो सिकंदर और आपका स्टार्ट स्लो भी हो तो आप आगे पिकअप कर सकते हैं। इस वक्त ये ज़रा जिसको कहते हैं खरामा खरामा चल रहे हैं, तो लेकिन ये आगे इसको तेज़ कर सकते हैं। अब्दुल वाहिद बंगलज़ई की जो पिछले 2 मैचेस में परफॉर्मेंस रही, जल्दी आउट हो गए। 250 हैं इनके इस टूर्नामेंट में। इसका जिक्र भी चल रहा था, हमने बात भी की है इस पे कि इनको अब इससे ग्रेजुएट करना होगा। 50 करने के बाद जो इनकी विकेट गिर जाती है। कल इनको बहुत अच्छा बॉल पड़ा था समीन गुल का। दोनों टेक्निकली बड़े साउंड हैं और एक प्लान के तहत खेल रहे हैं लग रहा है। मैं ऐसा सोच रहा था कि पावर प्ले में शायद ये सिलसिला होगा, लेकिन इसके बाद भी अभी सिंगल और डबल पे ये निसार है। 17 गेंदें हो गई लास्ट बाउंड्री जब से लगी है। 17 गेंदों का मतलब 3 ओवर हो गए ऑलमोस्ट, 1 गेंद कम। T20 में इतना हम नीचे अगर चले जाएं और शेल में खेलें, वो थोड़ा नुकसानदेह होता है, प्रेशर डाल देते हैं आने वालों पे। कोशिश की है बड़ा शॉट लगाने की और कामयाबी हासिल हो गई। ये होता है जब प्रेशर आप पे बिल्ड हो जाता है कि 3 ओवर से चौका नहीं लगा और ये बंगलज़ई ने अपनी विकेट जो है वो गवा दी। बिल्कुल सही आपने कहा कि प्रेशर क्रिएट किया, अननेसेसरी प्रेशर। फ्लाइट दी गेंद को और इनर एज और अच्छा कैच लिया। जब भी स्पिनर फ्लाइट देगा अक्सर उसको सक्सेस मिलेगा।
54, एक खिलाड़ी आउट। ग्यारह ओवर्स का खेल बचा है। आज कप्तान हैं सोहेल अख्तर और उन्होंने अपने आप को नंबर 3 पर प्रमोट किया और सही भी है, एक्सपीरियंस भी है उनके पास और एक प्लान के तहत आए होंगे, क्योंकि अब स्कोर तो चाहिए है। 180 तक अगर जाना है तो आपको फिर कम से कम 125 रन और चाहिए। ये विकेट देखें आप, मारना कहीं और चाहते थे, बॉल कहीं और गई और अच्छा कैच लिया। कैच गिराने का जो एक एपिडेमिक नज़र आया आज, उसको उन्होंने तोड़ा और कैच ले लिया। और यही होता है, जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे कि जब अगर बहुत स्लो बैटिंग हो जाए T20 में, तो चाहे पार्टनरशिप लगी हुई भी हो तो फिर भी प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि आप सोच रहे होते हैं कि अब शॉट्स खेलनी है और गलत बॉल पर भी आप शॉट खेल जाते हैं। तो अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि सोहेल और शफीक आगे किस तरह इनिंग्स को आगे लेके जाते हैं और किस स्पीड से रन बनाते हैं। जल्दी चले गए स्ट्रोक में और बैट लगा। अच्छा कैच लिया, टाइम किया सही जंप को। बड़ा शॉट अब्दुल्ला शफीक का, अपॉर्चुनिटी है यहां पर। क्या दूसरी विकेट गिर जाएगी? 2 फील्डर्स हैं और कैच करने में कामयाब हो गए। स्पिनर्स ने प्रेशर अपना और जमाते हुए और बढ़ाते हुए ऑपोजिशन पर, लगातार 2 विकेट्स गिर गई। दोनों ओपनर्स अब डगआउट में वापस। बड़ी कामयाबी है अब्दुल्ला शफीक। जी हाँ, रनों की रफ्तार बढ़ाने की गर्ज से इन्होंने ये शॉट खेली, बिल्कुल बल्ले पे नहीं आई, आसानी से कैच ले लिया मोहम्मद ताहा ने। चौवन, 2 खिलाड़ी आउट। मोहम्मद इब्राहिम बलूचिस्तान के लिए नंबर 4 पर आए हैं बैटिंग करने। दोनों ओपनर्स आउट हो गए। ये प्रेशर क्रिएट होता है जब आप पावर प्ले कैश आउट नहीं कर पाएं और आप 10वें ओवर के करीब पहुंच जाएं, तो फिर आपको घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। अब कुछ एक्सेलरेटर प्रेस करना है, लेकिन उसमें आप फिर रैश शॉट्स खेलते हैं, जैसे अगेंस्ट द स्पिन स्लॉग करने गए बंगलजई। जिस तौर तरीके की क्रिकेट या बैटिंग आप करते हैं एज एन इंडिविजुअल, उससे हट के अगर कुछ करने की कोशिश करें तो वो फिर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। ये शॉट अब्दुल्ला शफीक का आइडिया सही था, डाउन द विकेट आया, लेकिन फिर वही बात हुई कि बिल्कुल बल्ले के निचले हिस्से पे लगी बॉल। यंग मोहम्मद ताहा ने इसको अच्छा कैच किया। कैचेस का जैसे आपने जिक्र किया बड़ी किल्लत है, ये बड़े वैल्यूएबल हैं। अब 2 विकेट्स गिरने के बाद हुआ यह है लीना कि अब फ्रेश स्टार्ट चाहिए। दोनों बैट्समैन एक रन पे और एक बगैर किसी स्कोर के नॉट आउट हैं। अब ये वापस रीबिल्ड करना पड़ेगा सब। बिल्कुल, कप्तान पे भी प्रेशर है।
और साथ साथ नए आने वाले इब्राहिम पे भी प्रेशर है। और अगर एक साइजेबल टोटल या टारगेट आप ना दे सकें तो ऑब्वियसली आपका जीतने का चांस भी कम हो जाता है। और ये थोड़ा सा डीमोरलाइज भी होंगे बलूचिस्तान। इनको 2 बड़ी क्लोज मैचेस इन्होंने खेले और दोनों जीतने चाहिए थे इनको, लेकिन 56 for 2, 10 overs gone. हम जिक्र कर रहे थे किस तरह से स्कोरिंग रही है ओवरऑल नेशनल T20 को अगर देखें इस साल, तो पहले 10 ओवर में एवरेज बाउंड्रीज जो हैं टीमों की वो हैं 10, लेकिन आज बलूचिस्तान ने 6 ही लगाई हैं, जिसका रिजल्ट अब आपके सामने है। अब स्लिप को ले लिया गया, ये बुरा आइडिया नहीं है। अच्छी कप्तानी है शान मसूद की, क्योंकि नए बैट्समैन है दोनों, क्यों ना और प्रेशर एग्जर्ट किया जाए। बहुत ही शानदार बॉल, रॉन्ग ऑन था, इसको नहीं रीड कर पाए यहां मोहम्मद इब्राहिम और स्टंपिंग की अपील कर दी गई है। दोनों तरफ टर्न करते हैं अबरार, इसका पता होना चाहिए बैट्समैन को। बाहर निकाला इनके लेफ्ट फुट को, बड़ा अच्छा लेंथ। और इसको फ्लाइट दी और बीट हुए एयर में भी बैट्समैन। स्टंप तो कर लिया, देखना पड़ेगा कि पांव अंदर था या बाहर। ये पूरे ही बाहर थे मोहम्मद इब्राहिम, पूरा ड्रैग आउट हो गया, क्योंकि जब आपका वेट शिफ्ट हो जाता है फ्रंट लेग पे तो फिर आपकी ऑटोमेटिकली जो बैक फुट है वो हवा में चला जाता है और ये आउट है। ऑफिशियली भी हम इसको बिग स्क्रीन पे देखेंगे। परेशानियां बढ़ते हुए यहां बलूचिस्तान की, बहुत ही उम्दा बॉलिंग अबरार की। 56 पे 3 खिलाड़ी आउट। Come on, boy! Come on! Come on, Abby, come on, Abby! Come on, guys! Ready होइएगा, ऊपर से सिग्नल आओ, देखना जरा guys, come on! हिदायतुल्लाह जो कि कीपर भी हैं बलूचिस्तान के, बिस्मिल्लाह खान की एब्सेंस में वो आए हैं नंबर 5 पर। कर दे, एक अच्छा सा ब्रेक कर दे, सामने से एक अच्छा सा ब्रेक कर दे, बढ़िया हो रहा है, कम ऑन। हाय 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 हाय, गुड स्टॉप। इनका रॉन्ग ऑन बड़ा डिसेप्टिव है, जो आप देखें यूजुअली बैक ऑफ द हैंड आ रहा होता है लेग स्पिनर का, इनका हाथ बिल्कुल अलग होता है। और ये देखें लेंथ पे बीट किया है इनको, फ्लाइट दी, बाहर निकाला, ड्रैग कर दिया बैट्समैन को बाहर। क्लासिकल लेग स्पिनर्स डिसमिसल, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ये। थोड़ा सा सिकंदर, मेरा ये भी ख्याल है कि 2 मैच जो बलूचिस्तान ने हारे, ऑब्वियसली ये इनकी बॉडी लैंग्वेज नीचे चली गई होगी। ऐसे वक्त में मैनेजमेंट का भी काम होता है कि टीम को उठा के रखे, क्योंकि क्रिकेट जो है वो दिमाग और दिल की भी गेम है। इट्स मोर अ मेंटल गेम ऐसे कहते हैं। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट का भी कोई रोल होना चाहिए आफ्टर 2 डीमोरलाइजिंग डिफीट्स, हारों जो 2 हार के बाद। प्रीटी श्योर के फैसल इकबाल और उनके साथ जो सपोर्ट स्टाफ है वो लगे हुए होंगे इसमें।
और यहाँ मौके हैं आपके लिए इस पूरे नेशनल T20 में जीतने के। स्कैन करें इस QR कोड को और बेशुमार जबरदस्त इनामात जीतें। सिंगल के साथ सुहेल अख्तर स्ट्राइक रखेंगे और 58 हो गया स्कोर, 3 खिलाड़ी आउट। आउटफील्ड में जब भी बॉल जाए ना बंदे का नाम लेके, हाँ इधर से दिख नहीं रहा। दो विकेट्स अबरार की और एक दानिश अजीज की। स्पिनर्स कामयाब रहे हैं। जो विकेट्स गवाई हैं इन्होंने, उसमें एक अर्जेंसी नजर आ रही है, एक डेस्परेशन नजर आ रही है बैट्समैन की कि मुझे बड़ा स्कोर अगर टीम को दिलाना है तो मुझे कुछ करना होगा। इसलिए 54 पे एक गिरी, 54 पे ही दूसरी गिरी, 56 पे तीसरी गिर गई। एकदम से पैनिक बटन प्रेस हो गया कैंप में। अब सुहेल अख्तर खुद मौजूद हैं तो वो जरूर बात करेंगे हिदायतुल्लाह से भी। देखते हैं विकेट्स कैसे गिरी हैं। ये पहली विकेट थी, ये आप देखें डेस्परेशन है बड़े शॉट्स के लिए। अगेंस्ट दी स्पिन स्लॉग करने जा रहे हैं। ये बहुत ही उम्दा बॉल अबरार का, रॉन्ग ऑन, और मैंने वही कहा ये यूजुअली बैक ऑफ द हैंड से नहीं कराते ये। और फिर अब्दुल्ला शफीक भी बाहर निकले बड़ा शॉट खेलने के लिए। आज विकेट में भी स्पिनर्स के लिए कुछ मौजूद है और फ्लाइट भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है देख के कि बॉल को स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहे हैं। वरना ज्यादातर आजकल स्पिनर बॉल को पुश करते रहते हैं, तेज बॉल करते हैं। इन्होंने स्लोअर थ्रू दी एयर बॉलिंग की, लिहाजा इनको ये सक्सेस मिली। ये तो मुझे तो देख के बहुत ही अच्छा लगा, फ्लाइट दी। भी ओवर से पहले शान मसूद कप्तानों ने अपने कीपर को बोला कि जब गेंद ऑन साइड पे जाएगी, जो डीप फील्डर्स हैं उनका नाम लेके पुकारना, बिकॉज उधर डीप में खड़े होके सूरज आंखों में बॉल कभी कभार खो जाता है। इंटरेस्टिंग लिटिल थिंग्स हैं जिसको मैनेज करते हैं फील्ड में फील्डर्स अपने साथियों की मदद से। कोई फ्लैट शॉट अगर पड़ता है तो आप कहीं ना कहीं खो देते हैं बॉल को, तो कीपर की मदद होगी अगर वो प्लेयर का नाम लेके पुकारे तो उसको पता चल जाए कि बॉल उसकी तरफ आ रही है। ये डिफरेंट अंदाज है कप्तानी के और बड़ा अच्छा पॉइंट आपने ये उठाया। डिफरेंट कैप्टन्स डिफरेंट चीज़ों से डील करते हैं। कोई कप्तान इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से डील करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छी बॉल दानिश अजीज की। पार्ट टाइम स्पिनर भी इस विकेट पे फायदा उठा रहे हैं, फ्लाइट दे रहे हैं, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं जिससे उनको फायदा मिल रहा है। पिछली 35 गेंदें 17 डॉट, और इसको आप कर लीजिए 36 गेंदों में 18 डॉट्स, यानी 6 ओवर में 3 डॉट ओवर्स, 59, 3 आउट। थोड़ा सा अंदर आएंगे। ठीक है गुरु भाई, रेडी रहना। ताहा थोड़ा सा रेडी रहना। चले आजे, आजा, देखना टू की बॉल है। ताहा into the onside, just a single, and it's almost come to a halt the innings. Never really took off, but last few overs it's been
It's not even like the Lahore traffic, which is flowing today. You need to get out of the rush hour and start driving. Chance in the deep and dropped. It went straight to him. Should have been taken. Usually a better fielder, Taha, but this time I think he didn't pick it up. It was way outside off stump. Tried to reach it, didn't middle it. And it didn't middle the hands of Taha as well. Beauty, beauty, my boy. Another chance gone down. You know that Balochistan are out of the tournament and it just feels as if scramble single, just feels as if it's a team that's just going through the motions so far. There's not been a lot of stroke play. It's into the 13th over and you're still not, well, you're not run a ball. It's been a long tournament and it's showing. Beauty, beauty, my boy. Kya baat hai? 41 deliveries since the last boundary and counting. Good, good. Good ball, my boy. Aja. 63 for 3. Shop.pcb.com.pk. Create an account and order from the official PCB merchandise store now. Get a chance to win Pakistan cricket team T20 World Cup shirt. And that World Cup shirt will be signed by all the Pakistan squad. Those guys who are practicing there. Preparations are on its way. T20 World Cup just around the corner. A lot of eyes on that big event. But here in Gaddafi Stadium, it's spinners who have done the trick for Sindh. Beauty. 3.3 overs, 1 for 9. Left arm spin, Danish Aziz. Make that well, he's dropped it. It's almost 2 for 9. I think it's gone through Shan Masood's hand and he's hit it. He's got struck in the stomach. That was hammered by Sohail Akhtar. I think that was a very awkward, wasn't an awkward length, but probably reacted little late, Shan Masood. Yeah, right on the chest. Let's go back to that. Maybe catches being taken in the nets. But Taha with quite a simple one. This one just smashed back at him. LCCA ground. Playing host to the Pakistan squad.
Broadcasters, Pakistan, North America, UK and Europe. Streaming, well, PCB YouTube channel, PCB Facebook page for high definition crisp pictures. Tries to go leg side, beaten again. Loves to favor that. It was quite way outside off stump, should have gone the other way. But so far, spinners are in control. Leg side, this time connection is good. Oh, the fielding again. This is really ridiculous with the field. No calling, nothing. And I think that's gone to the fence. 69 for 3. Fielding has been a problem. Those leg sides in the gap should have been stopped, really. Taha, well, a bit of a hug with Roman Reis. But it is a comedy of errors. He's actually thinking of Roman Reis coming there, and in the end that ball sort of parried away to the fence, but must have better communication. We've seen this quite a bit in this national T20. Head coach unmoved. I think he can't believe it either. Well, he hasn't seen it. I've seen number of collisions on the field, and every time the calling was the problem. I can't understand why that should be a problem. That was the first attempted run out. Had it been a direct hit, it would have been curtains. And then that one too, Danish just missing it. That was Mataha. Never finished the catch. And then was struck hard, but should have been taken. And then this was the collision, which ended into another boundary. Well, after that collision, he's straight on the ball. Started off pretty decently, so the collision hasn't affected him much. But he's dropped a catch, had a collision, and now he's in the pick of things with the ball. Well, looking at that package, and you'd think that after all those mishaps, GFS Sindh would be made to pay. But the scorecard reads 70 for 3, and there's, what now, 34 deliveries remaining? Never got the momentum, Balochistan. Kept the wickets kept falling, and I think that spinners have done quite a bit, utilizing that tinge of grass on the wicket. But Sohail Akhtar still there. We know he can change gears. Beauty, beauty, Taha. Beauty, my boy. Spin, spin, and more spin. Very well done, Taha. Very well done. Very well done, Taha. Danish Aziz with extremely economical spell, but he's through his 4 overs. Now Taha with left arm spin, just gone for 2. He's diving around. The physio will have to do a lot of work with him. Short again, the ball's not arriving, and it's another dot ball. I think it's good captaincy by Shan Masood, operating in spin. It's turning, but yes, just going through the overs very quickly.
72 for 3. Left arm bowling over, sir. Well, it's a single-story housing unit. 4.8 per over, 15 overs gone. And the spinners, well, they've come on and just put a squeeze on. Ibra 2 for 15 or 4. Tanish Aziz 1 for 14, and they created chances which were missed as well. Taha has bowled 1 for 3. Fast bowlers didn't do a bad job, but the spinners was just exceptional. And 9 overs done and dusted by spinners. That's brilliant. Never allowed the batting side to gain momentum. A pace on, it's been punished through the offside and a boundary. What a rare occurrence. That will be a relief for Balochistan. We know that Sohail Akhtar is really strong. Cutting the ball, just fighting for it ever so slightly and opening the face of the bat. Wrist coming into play, gets a boundary. And it's a Palti moment. That's not exactly rollicking along, so you've got plenty of moments. Enjoy your tea in comfort. Outside off stump, smash, but straight to the man. He's got his bearings with the fast bowler on at Sohail Akhtar. Yeah, he's not going to spare that length. It's one of his strength areas. That's slightly over pitching it. He's lucky to get away. Went straight to Shachil. Yeah, pace off. Pace off is the way to go. The slow one, suddenly it almost dies off the pitch. Hamza quickly learning things. That was a good change of pace. Just whipping it through Sohail Akhtar. He did pick it up, but never got a wood on it. Slow bouncer. So tomorrow GFS Sindh will play a semi-final. Now, I don't think this game will have any effect on that semi-final, but as a fielding unit, you need to keep your standards up. They'll be disappointed by the way they feel today. Not just the drop catches, but the intensity on the field has been pretty poor. That's not something you want to see in your dugout. It does has a certain vibe. But certainly I think there will be one point of concern for Sindh today. Just trying different combinations. I had a chat earlier with Basid Ali. But then again, you need to maintain that bar. And another swing and a miss. 16 gone, 77 for 3.
77 पे 3 खिलाड़ी आउट। सिर्फ 4 ओवर का खेल बाकी है जिसमें जो करना चाहें कर सकें बलूचिस्तान। यानी 24 गेंदें हैं उनके पास। सिलसिला बिल्कुल ही बरक्स रहा है उस प्लान के जो शायद उन्होंने रखा होगा अपने जहन में इस मैच के स्टार्ट से पहले। और पिछले स्टेंट में जब मैं यहाँ था अलीना के साथ उस वक्त 6.4 रन रेट था, अब 4.8 हो गया, तो और गिरता जा रहा है। 13-22 गेंदों पे सोहेल अख्तर, 9 रन सिर्फ हिदायतुल्लाह के 15 गेंदों पर। हाँ, बलूचिस्तान वाकई वो टीम लगी है जो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हो। जैसे आपका दिल बुझ सा जाता है, तो वो अर्जेंसी नहीं नजर आई इनके खेल में। अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो भी सेकंड फिडल रोल में नजर आए। मंगल से ही जरूर रन्स बनाने की कोशिश करते रहे पावर प्ले में, और जो पहले 10 ओवर्स में स्ट्रोक प्ले इनका खासा था इनके टॉप ऑर्डर की जानिब से, उसका फुकदान रहा है आज के दिन में। इस बार आहिस्ता गेंद थी, एक और मौका और कैच ले लिया। कोई गलती नहीं की इस बार ताहा ने। रुमान रईस की कामयाबियों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। पिछले मैच में हैट्रिक की और इस बार ये देखिए बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी जो उनको कई विकेट दिला चुकी। हिदायतुल्लाह 9 रन बनाकर चले वापस पवेलियन। उन्होंने 16 गेंदें खेली, 78 पर 4। आज अम्माद भट्ट नहीं है, उमैद आसिफ आए हैं खेलने के लिए नंबर 6 पोजीशन पर। और इसी से ही इनकी बैटिंग की बदहाली का हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि फास्ट बॉलर जो हैं वो पहले 6 में बैटिंग करने पर मजबूर हुए। 40 इनका बेहतरीन स्कोर है, ज़रूर चौके छक्के लगा सकते हैं। जी हाँ, अब यही कुछ पेट्रोल डालें बलूचिस्तान की गाड़ी में ताकि सफ़र आगे बढ़े। दूसरे के लिए दौड़ पड़े। हल्की सी मिस फील्डिंग और गलत एंड पे थ्रो कर दिया, वरना शायद चांस हो सकता था। हाँ ना के मसले में फंस गए दोनों बैट्समैन। यहाँ दूसरी जानिब जो सिंध की टीम है उसने बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ा। आज इस मुकाबले को गिरफ्त में ही रखा है अपना, खासतौर पर उनके बॉलर्स ने। हालांकि कई मौके पर कैचिंग ऐसी थी जिसकी तहसीन नहीं की जा सकती। इस सीजन का लोएस्ट है सदर्न पंजाब का बलूचिस्तान के खिलाफ 101। यहाँ 80 पे 4 हैं, लेकिन ओवर 17 है। लेकिन सिकंदर जो बलूचिस्तान है ये बैटिंग में ये एक ऐसी टीम रही है जो सबसे कमतर है। बैटिंग में 6.8 इनकी रन बनाने की औसत थी पूरे टूर्नामेंट की। उनकी जो बैटिंग की औसत थी वो भी सबसे कम है, 25 की है अगर पर विकेट हम बात करें। खेला मिड विकेट की जानिब, यहाँ पर दूसरा रन का मौका नहीं दिया। अच्छी फील्डिंग इस बार हसन मोहसिन की जानिब से, पूरी तरह फुर्तीले नजर आए। ऑन साइड की फील्ड पूरी फैली हुई है, सिवाय फाइन लेग के जो सर्कल के एज पर हैं 30 गज के।
इनकी पेस जो है रोमान रईस की, इसके अगेंस्ट मारना और भी मुश्किल है। बड़ी बाउंड्रीज को अगर आप टारगेट कर रहे हो, ये अच्छा मिक्स करते हैं। कई गेंदें बहुत ज्यादा स्लो करेंगे, फिर जो यॉर्कर है बिल्कुल स्टंप टू स्टंप। इस ओवर में सिर्फ 5 रन बने और विकेट भी मिली रोमान को 82-50। बैटिंग तो अभी भी है इनकी। काशिफ भट्टी और जो मोहम्मद मोहसिन है, ये अच्छे बैट्समैन भी हैं। दोनों स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन बैटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आज इनकी जो बैटिंग की तरतीब थी, कुछ जाहिर है उस पर भी सवाल किए जा सकते हैं। आज इनके कई सीनियर खिलाड़ी खेले नहीं। हारिस सुहेल टीम से बाहर हो गए। इमामुल हक जो हैं वो भी शामिल नहीं हो सके। इन एंड आउट रहे हैं इमाम भी इंजरी की वजह से। इस टूर्नामेंट में कप्तानी उन्होंने संभाली, कुछ जीत हासिल हुई। यही कहानी अलग वजूहात की वजह से सिंध की भी रही है। बेंच है, मोहसिन बैठे हुए हैं लेफ्ट पर, स्क्रीन पे आपके राइट पे बैठे हुए हैं काशिफ भट्टी। 3 कप्तान जो हैं वो सिंध के भी हुए हैं, GFA सिंध। पहले सरफराज, फिर अनवर अली और अब शान मसूद। लेकिन सिंध की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी अच्छी रही है। सिंध के बॉलर्स जो हैं उन्होंने बिल्कुल प्लान के मुताबिक बॉलिंग की। विकेट कीपर ये नए आए हुए थे, हर गेंद पर ये शोर मचाते रहे मोहम्मद अफजल। विकेट कीपिंग भी इन्होंने अच्छी की। आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। बॉडी लैंग्वेज का भी फर्क था, क्योंकि जिस तरह से अफजल ने रन आउट स्टंप किया भी काबिल दीद था। वो आसान स्टंपिंग नहीं थी। इनसाइड एज को बीट किया था उस वक्त अबरार अहमद ने। ऊंचा शॉट खेल दिया है और इसको सही तरह से कनेक्ट भी करने में कामयाब रहे हैं। सोहेल अख्तर का शानदार छक्का, इनिंग्स का पहला मैक्सिमम है ये। यार बड़ी आसानी के साथ खेला। सैन ने लेंथ ऑफर की और खासा डीप चले गए थे, बिल्कुल स्टंप से लगे हुए खड़े थे, वहीं से ही इसे पिक करने में कामयाब हो गए। एफर्टलेस बैटिंग। आपने अभी जिक्र किया GFA सिंध का, उनकी बॉडी लैंग्वेज का। मुझे असल फिक्र जो है वो ये है कि कल हैं सेमीफाइनल्स, और ये मैच तो खैर वो इतना ज़्यादा परेशान को नहीं होगा इनके लिए, लेकिन कल से नॉकआउट स्टेज है। इनके मिडिल ऑर्डर थोड़ा हल्का हो गया है। सरफराज नहीं है, अनवर अली अब अवेलेबल नहीं है, खुरम मंजूर का बल्ला इतना नहीं चल रहा, तो ये पूरी तरह डिपेंड करेंगे स्टार्ट पे शर्जील और शान मसूद के। लेकिन उसके बाद जो इनका लोअर मिडिल ऑर्डर आता है, जहां पे अनवर अली पे बड़ा इन्हिसार करते थे बड़ी हिट्स के लिए, वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है उनके जाने से। जी हाँ, टॉप ऑर्डर जो है वो इनकी जिम्मेदारी लेता रहा है, और क्योंकि मिडिल ऑर्डर में सरफराज अहमद भी नहीं है, इसे टॉप ऑर्डर को अपना किरदार और खुश उसलूबी के साथ अदा करना होगा। खुरम मंजूर की टीम में आज वापसी हुई है। यहाँ एक ही रन यहाँ पर हासिल कर सकेंगे, और इनकी लोअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, उसमें जाहिर है कि ये दानिश अजीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको 6ठे नंबर पर भी खिलाया जा सकता है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने बॉलिंग ज़्यादा अच्छी की अपनी बैटिंग की निस्बत दानिश अजीज़ ने, लेकिन ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो माने हुए फिनिशर हैं। डोमेस्टिक मुकाबलों में कई नाकाबिल यकीन कामयाबियाँ इन्होंने सिंध को दिलाई हैं ओवर द ईयर्स T20s में। एक बार फिर लेंथ थी, लेकिन इस बार हाथ खोलने का मौका नहीं।
इस ओवर से 11 रन आए, 93 पर 4। ये मैनहट्टन जो आप देख रहे हैं, ये इमारतें किसी छोटे शहर का नक्शा लग रहा है। कुछ बड़े बड़े स्कोर्स नहीं है, मैक्सिमम 11 ही हासिल हुए हैं। लेकिन विकेट्स जो है ना, ये बड़े चंक्स में गिरी हैं, 3 एक साथ हैं। उसके बाद कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ, बड़ी हिट्स नहीं लगी, जिसकी वजह से ये जो 18 ओवर गुजरे हैं, ये बड़े परेशान कौन गुजरे हैं। हिट्स नहीं आ रही, बाउंड्रीज नहीं मिल रही बलूचिस्तान को, क्योंकि यॉर्कर करने पर इनको महारत है, बहुत अच्छा कंट्रोल है अपनी रफ्तार में रद्दोबदल करने पर रुमान रईस को। और यही सबब है कि ये टूर्नामेंट के जो इकॉनमी के एतबार से सबसे अच्छे बॉलर हैं। आखिरी 5 ओवर्स में इस साल रुमान रईस की जो रन देने की औसत है वो सिर्फ 6.27 है। और इसके बाद जो अगले बेहतरीन बॉलर हैं इकॉनमी के एतबार से, वहाब रियाज, एक और अच्छा यॉर्कर। वहाब रियाज की 8.08 है। इससे अंदाज़ा लगाया इसका कितना फ़र्क है, तकरीबन 2 रन का फ़र्क है इनका दूसरों से। इनको अफसोस होगा आज जिस तरह सेट होने के बाद आउट हुए अगेंस्ट द टर्न खेलते हुए। ओवर नंबर 16 और 20 के बेस्ट इकॉनमी रेट्स में रुमान रईस का नाम सर फहरिस्त। फिर वहाब रियाज का आपने जिक्र किया, ये सारे अच्छे इकॉनमी रेट्स हैं। अगर आप 185, 200 की बात कर रहे हैं आखिरी के 4 ओवर्स में, ये बड़ा अच्छे इकॉनमी रेट्स हैं। इस बार दूसरे रन के लिए क्या क्रीज तक पहुंचे हैं आसिफ याकूब ने यही सवाल उठा दिया टीवी अंपायर की जानिब। ज्यादा खुशी मनाई नहीं रुमान रईस से। ज्यादा खुशी उमैद आसिफ ने भी नहीं मनाई कि वो पहुंच गए हैं। लग रहा है मामला कुछ करीब है, और है बिल्कुल मामला करीब है, लेकिन उमैद आसिफ दूर हैं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि नहीं, काम हो गया है। आउट, 5वीं विकेट गिर गई 96 पे। तो उमैद आसिफ जो है सिर्फ 5 रन बनाने के बाद आउट हुए हसन मोहसिन के हाथों। उन्होंने थ्रो की थी 96, 5 खिलाड़ी आउट बलूचिस्तान। काशिफ भट्टी, अच्छा टूर्नामेंट रहा है इनका, लेफ्ट आर्म स्पिन के साथ। कुछ 1-2 अच्छी इनिंग्स भी हैं डाउन द ऑर्डर। लंबे कद के मालिक हैं उमैद आसिफ, लेकिन फिर भी मुकम्मल नहीं कर सके दूसरा रन, क्योंकि पहला इतना तेज नहीं भागा था। अच्छा पिकअप और थ्रो यंगस्टर का, हसन मोहसिन का, और रुमान रईस ने भी उतना ही अच्छा काम किया। आपने अभी जिक्र किया था जीएफएस सिंध का, मैं ज्यादा उनका देखना चाहूंगा कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहेंगे सेमीफाइनल में। उनकी बेंच पे अभी जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं, ये शॉट 4 हासिल हो सकता है। टाइमिंग बहुत अच्छी है, नहीं पहुंचेंगे दानिश अजीज, और बिल्कुल नहीं चाहता सिंध के कहीं भी एक्स्ट्रा रन दिए जाएं। 101 बराबर कर दिया अब तक के लोएस्ट टोटल का, जो कि सदर्न पंजाब का था। जहां फिर से यॉक करने की कोशिश की, लेकिन जरा सा अपनी लेंथ को मिस कर दिया।
तो खूबसूरती के साथ खेला, गैप ढूंढ निकाला, क्रीज पर पहुंचते ही काशिफ भट्टी ने तो बिलाखिर ये 100 का हिस्सा है, ये अबूर कर लिया है बलोचिस्तान ने। इसके लिए उन्हें बड़ी तगदो करना पड़ी, खासी जिद्दोजहद के बाद वो 3 फिगर्स में पहुंचे। रोमान रईस अपने इस ओवर में 8 रन देकर गए, 101 पे 5। ये बहुत ही ज़रा हटके है ये स्कोर कार्ड। 101 रन है और विकेटें भी सिर्फ 5 ही गिरी हुई हैं। तो कई बार विकेटों की जो अहमियत है उसको ज़रूरत से ज़्यादा समझ लिया जाता है। T20 क्रिकेट में 20 ओवर्स में आपके पास 10 विकेटें होती हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा भी अपनी विकेट की फिक्र नहीं होनी चाहिए इस तरह के क्रिकेट में जितनी यहाँ नज़र आई है। और ये जोरदार हिट लगाई सामने, 6 रन। दूसरा छक्का है ये सुहेल अख्तर का। गेंद आहिस्ता थी और पाले में आ गई। इस बार सुहेल अख्तर के ताकतवर स्ट्राइकर हैं। आखिरी ओवर चल रहा है, जल्दी से हम अगर कुछ हुआ नहीं खास इस बॉल पे तो नजर डालना चाहेंगे सिंध। दूसरे रन की आवाज लगी है। सिंध के बेंच पे अगर ये डिपेंड करता है कि खत्म कहां करते हैं जीएफएस सिंध इस सेमीफाइनल पोजीशन के लिए, अगर रात का मैच है या दिन का मैच है। लेकिन शायद मीर हमजा की जगह सुहेल खान आ जाएंगे, जाहिद महमूद अपनी जगह बना सकते हैं, अबरार की जगह एहसान अली जरूर आ जाएंगे टीम में, क्योंकि वो कीपिंग भी कर सकते हैं। तो शायद कीपर की जगह फिर ना बचे जो आज मोहम्मद अफजल हैं। ये जो हैं ये डेफिनेट चेंजेस होंगे। हो सकता है मोहम्मद हसनैन जगह दे दें सुहेल को और मीर हमजा रहें, लेकिन ये कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा इनका। ये रात को खेलते हैं क्योंकि अगर फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे फिनिश करता है जीएफएस सिंध तो दिन का मैच खेलेगा, दोपहर का। यहाँ जो पहला सेमीफाइनल है ये पहले नंबर और चौथे नंबर की टीमों के दरमियान होगा। ये अच्छी डिलीवरी थी, इस बार पहले खेल दिया और रन आउट का भी मौका है। मीर हमजा ने ये नई जिंदगी दे दी यहाँ काशिफ भट्टी को। ये अगर दूसरी कोशिश में भी गेंद को कलेक्ट कर लेते तो आउट हो जाते यकीनी तौर पे। विकेट कीपर को आप बिल्कुल दोष नहीं दे सकते, फौरन ही उन्होंने अपना दस्ताना उतार के थ्रो की। मीर हमजा कलेक्ट करने से कासिर है। वाइट बॉल का इशारा। मीर हमजा को लगता है कि शायद हल्का सा पैड को लगा था गेंद। सिकंदर, एक तो सऊद शकील जो हैं उनकी वापसी यकीनी होगी अगले मैच में, क्योंकि सरफराज अहमद भी नहीं है मिडिल ऑर्डर में, तो आपको तजुर्बे की ज़रूरत हो सकती है। क्योंकि शान मसूद, खुर्रम मंजूर, शर्जील के साथ अगर अहसन को खिलाया जाता तो फिर ये 4 ओपनिंग बैट्समैन होंगे, तो यके बाद दीगरे क्या आप इन चारों को खिलाना चाहेंगे अगर सऊद नहीं खेलते? क्योंकि अनवर अली नहीं है, सरफराज नहीं है, तो सऊद शकील की जगह बनेगी। थोड़ा सा मिडिल में चाहिए होगा कुछ ऐसा बैट्समैन जो चला सके। एंकर का रोल, फिर 2 की कोशिश और वापस निकलना, वापस जाना पड़ेगा और फिर मिस कर गए मीर हमजा। मीर हमजा ने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन ये थ्रो कलेक्शन के मामले में देखिए बहुत गलतियां कर जाते हैं। देखिए लंबे कद के हैं
ये देखिए नजरें बिल्कुल हटा लेते हैं जिस वक्त थ्रो इनके करीब पहुंचती। वो पीछे भी नहीं थे ये स्टंप्स के, आइडियली जहां पर इनको होना चाहिए था। लेकिन इसमें कोई कलाम नहीं कि सिंध के फास्ट बॉलर्स ने खुद को दूसरों से बहुत बरतर साबित किया है इस टूर्नामेंट में। अगर किसी टीम ने अपनी रफ्तार से, अपनी वेरिएशन से और जो कंट्रोल दिखाया है, वो सिंध के बॉलर्स दूसरों से मुख्तलिफ लगे और आगे लगे। देखिए ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि T20 क्रिकेट में विकेट्स इन हैंड का कोई फायदा नहीं। आपके पास 5 विकेट्स अभी हैं, लेकिन 112 आपका स्कोर है। सर्टन स्टेजेस की बात है मैच की। अगर आप 3-4 विकेट्स पावर प्ले में ही खो गए हैं तो फिर आप अलग हिकमत अमली अपनाते हैं, लेकिन अगर आप 15-16 ओवर तक आ गए और आपके पास 5 या 6 विकेट्स हैं तो फिर आप चांस लेना शुरू कर दें। और 54 पर एक ही आउट था आज बलूचिस्तान का। बड़ी अच्छी बॉलिंग, ज्यादा तजुर्बात नहीं किए सिंध के बॉलर्स ने, यॉर्कर्स पर इन्हिसार किया है और वो कामयाब रहा। ये आखिरी 5 ओवर्स में सिर्फ 41 रन बने। विकेटें हाथ में होने के बावजूद 7 विकेटें थी आखिरी 5 ओवर्स में बलूचिस्तान के हाथ में, लेकिन वो 41 से आगे नहीं बढ़ सके। 113 उनका आखिरी स्कोर रहा। काशिफ भट्टी नॉट आउट 5 और सुहेल अख्तर ने 37 रन के साथ मुजाहिमत की, लेकिन ये मामूली सा स्कोर लगता है सिंध की मजबूत बैटिंग लाइनअप देखते हुए। आज अलग ही बलूचिस्तान दिखा, जैसे कि मूड ना हो ये कर पाए वो आज जब उनको बैटिंग दी गई। पहले पावर प्ले में भी कुछ नहीं हुआ और उसके बाद सुहेल अख्तर भी स्ट्रगल करते रहे, 37 ही बना पाए 36 गेंदों पर। उसके बाद 3 बैट्समैन सिंगल फिगर्स में रहे। ओवरऑल 113, 5 आउट। जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है, अबरार अहमद बड़े कारगर रहे। 15 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। रुमान रईस ने एक बार फिर अपनी हिफाजत साबित की, गुज़श्ता मैच में हैट्रिक की थी और आज भी 10 डॉट बॉल करने में कामयाब हुए। सिर्फ 25 रन दिए, 1 विकेट के एवज। एक खिलाड़ी को दानिश अजीज ने आउट किया और वो भी स्टैंड आउट बॉलिंग परफॉर्मेंस में से एक थे। और अब वक्त तो चला है मरीना इकबाल की तरफ चलने का, जो मैदान पर हैं अबरार अहमद के हमरा। इब्रार जबरदस्त बॉलिंग, 15 रन दिए, 2 विकेट्स ली। सबसे पहले बताएं कि विकेट कैसे रीड किया था आपने? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। जब मैंने पहले ही ओवर किया तो पिच में थोड़ा मॉइस्चर था, तो जिसकी वजह से मदद मिल रही थी थोड़ी बहुत। तो पहले ओवर के बाद मैंने यही कोशिश की यार आउट करने जाऊँ, क्योंकि आउट करेंगे तो कम से कम रन बनेंगे, क्योंकि एंड में आपको पता है कि रन बन रहे। तो यही कोशिश थी कि आउट पे जाऊं और उसमें कामयाबी मिली। अच्छा, थोड़ा सा देखे पिछले मैचेस में आज आपकी लेंथ और पेस डिफरेंट थी, तो उसका कोई उससे विकेट से मसला था या आपने खुद चेंज किया? नहीं, पेस मैंने खुद कम इसलिए रखी थी कि क्योंकि बॉल ग्रिप हो रहा था ना थोड़ा, तो बल्ले पे अच्छा नहीं आ रहा था। तो मैंने यही कोशिश की यार थोड़ा पेस कम करके बॉल करता हूँ, जिससे मुझे मदद मिली। आगे सेमीफाइनल्स हैं, इस पे विकेट पे रन आसानी से बन रहे हैं, यहाँ पे देखा है। तो आपको क्या रोल लगता है स्पिनर्स का? विकेट टेकिंग है या कंटेन करने जाना चाहिए? ये अगर आप पहला ओवर करोगे उसके बाद ही पता चलेगा कि यार मुझे कंटेन करना है या मुझे जो है ना आउट पे जाना है, और कोशिश मेरी ये होती कि मैं आउट पे ही जाऊँ। अच्छा कॉम्बिनेशन सिंध का नज़र आ रहा है सेमीफाइनल्स में, आपको क्या लगता है किस तरह परफॉर्मेंस होगी? इंशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी टीम है और सेमीफाइनल के साथ साथ ये फाइनल भी हमारा होगा इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू, वेल बोल्ड। तो जीएफएस सिंध के सामने 114 रन का हदफ है 20 ओवर्स में। क्या वो इस तक पहुंच सकेंगे, ये हम जानेंगे एक वक्फे के बाद।
कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आज बलूचिस्तान की टीम सिर्फ 113 रन बना सकी 5 विकेट के नुकसान पर। सुहेल अख्तर टॉप स्कोरर है, 37 रन बनाए, लेकिन चोटी के तीनों बैट्समैन में से किसी एक की भी जो स्ट्राइक रेट थी वो 100 से ज्यादा नहीं थी। इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए थे अब्दुल्ला शफीक और अब्दुल अहद बंगलजई। दोनों ने शुरू में बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट लगाने में कामयाब हुए। ये पुल शॉट था बंगलजई का। आज अब्दुल्ला की निस्बत ज़्यादा खुलकर उनने बैटिंग की इब्तदाई ओवर्स में, और दोनों का जो बैकफुट प्ले था ये हमेशा से अच्छा रहा। ये सामने हिट आउट किया अब्दुल्ला शफीक ने। अबरार अहमद खेलने के लिए आया, यहाँ से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। कॉटन बोल्ड हुए बंगलजई, और उसके बाद अगले ही ओवर में दानिश अजीज को छक्का लगाना चाहते थे, ताहा को कैच दे बैठे। इस बार वाइड डीप मिड ऑन पर अब्दुल्ला, और फिर एक और विकेट गिर गई। ये बड़ी अच्छी स्टंपिंग थी अफजल की जानिब से। हिदायतुल्लाह विकेट कीपर आउट हुए, और उसके बाद फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं रही, खासतौर पर लेग साइड में जो आउट फील्डिंग थी वो कोई इतनी आला और म्यारी नहीं थी। कैचेस गिरे, कैचेस पकड़े भी गए। रुमान रईस ने एक बार फिर अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा किया, और आखिर में सुहेल अख्तर के स्ट्रोक्स और मुजाहिमत की वजह से इस टीम के रन्स बढ़ते गए, लेकिन इस सस्ता में रन आउट भी हुए उमैद आसिफ। ये काशी भट्टी ने ये चोट की, ये आखिरी जो चोटें हैं ये हमने देखी मीर हमजा के ओवर में, जो कि इनिंग्स का इख्तितामी था। सुहेल अख्तर नॉट आउट वापस आए, उन्होंने 36 गेंदों में 37 रन बनाए। मीर हमजा ने 4 ओवर किए, 28 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। रुमान रईस की बॉलिंग की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी, उन्होंने 25 रन देकर 1 विकेट हासिल की। हसनैन कदरे महंगे रहे, वो पाकिस्तान टीम के कैंप से वापस आए हैं। 3 ओवर 27 रन, कोई विकेट नहीं। अबरार पिक ऑफ द बॉलर्स है, और मिस्ट्री स्पिनर के 4 ओवर में सिर्फ 15 रन बने और उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। दानिश अजीज ने भी बड़ी उम्दा बॉलिंग की, और सबसे अहम विकेट उन्होंने हासिल की अब्दुल्ला शफीक की। तो GFS सिंध के सामने अब 114 रन का हदफ है, और अपनी इनिंग्स में वो क्या कर सकेंगे एक वक्फे के बाद यही जानेंगे।
Welcome back. We are halfway through match number 29. Now this is an important game as far as Sindh are concerned, because they want to find out where they're going to be on the table. Balochistan is their opposition, and they haven't played well so far in this game, so it gives Sindh a real opportunity here, because they currently, there's the cues for qualified, so we know who's qualified for the semis, but Sindh are currently sitting at the number 4 spot. They win this one, they go to 12 points. They win it really well, their net run rate is going to improve dramatically, and they'll go to top. So that was my prediction at the start of play. So then they'll have to watch and see what happens with that second game later on today between Northern and Khyber Pakhtunkhwa, to see what happens with that one. So there'll be a bit of shuffling around, I would imagine, and GFS Sindh clearly, first of all, will want to just make sure they win this one. But if they win it with, say, 5 overs to go, I'll get our statistician Azim onto this, so he can give us a bit more of an indication to see where they need to win it by, or how much they need to win it by to get to the top of the tree. Right, Shazil Khan. He has been in really good form in this edition of the National T20 Cup. He's a very aggressive player. That strike rate of 140, 121 matches. He will play in that normal vein. Krum Manzoor is someone who will probably allow him to do most of the hard work, but he's going to play his role as well. They'll want to get out of the blocks quickly, because that's something that Balochistan didn't do. 6 overs, they were 40 for none. 10 overs, they were 56 for 2. It really was quite a weird innings by Balochistan. That's my best description. And it could have been worse if there'd been some better fielding from GFS Sindh, because their fielding was fairly average. Some catches going down, and also some missed run-outs. So I would imagine that Basid Ali, the coach, is expecting them to win and win well. But in saying that, he's not going to be particularly happy, I don't think, with what he's seen in the first half so far. Junaid Khan scratching around there like a chicken in a cage. Shazil is at the non-strikers end at the moment, just getting familiar. Lena, how are you doing? Well, after watching the first innings, I couldn't. I'm glad I'm sitting here and commentating with you. I mean, I think it was a cluttered effort by Balochistan. They didn't have a plan. I don't know what they were doing. I mean, 50 for no loss, and then hardly getting 100. Strike rates not up to the mark. Shots, areas, they didn't have any idea what they were doing, actually. So a little disappointed. I thought it was not a great effort at all. So they ended with 113 for 5. Batting conditions are really good. Junaid Khan is going to have to strike early, not just once, but certainly twice, I reckon. I feel for the bowlers also, if the batters don't give them much to bowl at, I mean, a score of around 100, kudos to them that they're trying their best and, you know, running in and trying to get wickets. Absolutely. Well, they did have their chance over the last couple of nights. They went down in a couple of close ones. A couple of catches going down at crucial times. There's a shy of the stumps from Umaid. Direct hit is often prompts a look upstairs. Yeah, let's see what happens here. There was a direct hit. Oh, he's shot. And that should be out. Wow. Now that is extraordinary fielding from Umaid. 37 years of age, shying at the stumps. Direct contact, and they've lost a quick one. GFF Sindh, and it is their gun batsman. There's the big fella, big smile on his face. He's saying to these youngsters, that's how you got to do it. Be nice and aggressive out there. Mansoor with a strong drive, good dive, pick up and throw at the stumps. And Shazil was literally looking at his partner.
Well, just having a chat and not getting back to his crease, not doing the basics right. 1 for none. Shah Masood just took a beeline to Masood and just Mansour, sorry, and said, "What's going on? How did that happen?" He's making his way down to the non-strikers end. 80 games, strike rate of 120, 1,700 runs, 9 50s and 100. Good start by Balochistan. Well, that run out, it seemed like they were making dinner plans and just saying, hey, you want to go out to dinner, and let's see maybe where, which restaurant. Oh, maybe nowhere, back to the pavilion. Yeah. Amazing how sluggish he was, Shazil, getting back. He was just hovering in the middle of the pitch, having a chat to his partner, and then the last minute he turned around and then suddenly thought, oh my goodness, I've got a stretch here, and I think then he knew he was in trouble. Batsmen know when they're in trouble when there's a direct hit. They have a nasty feeling about them. Off the mark early. Well, the gentleman who could have gotten them to a great start, a quick start, swift start, is now back to the pavilion. And Masood is in. He plays at his own pace. Good batsman in good form. But we've got Manzoor, who can play quickly and get a few runs quickly and get that run rate up to sort of play whoever they want tomorrow in the semi-final. So Manzoor's got to be the guy now. He's been playing nicely actually in the last couple of days, as Shah Masood. These people are settling in, these gentlemen, with a bit of Tapal tea. So it's a left and right-handed batting combination. Someone like Junaid is not going to be upset by that at all. He's experienced. Perfect line to the left-hander. One for one. Not a great position to be, but I mean, just 1 over hardly. They've got a lot of overs, not so much to chase. They can relax and chase it and still be in a comfortable position. Yeah, they've got a little bit of breathing space due to the lack of enterprise from Balochistan. Oh, it's straight to the fielder. He would have been okay, I think, had there been a direct hit, but I don't know why you want to take any risks at this stage. Basit Ali, we're having a heart attack on the sidelines. 1 over gone, 2 for 1. Mosen and Aziz, the next 2 batsmen for GFS Sindh.
So the name of the game, quite simply, right now, after losing that wicket first up, will be just trying to get some sort of stand together. A couple of experienced players, Manzoor and Masood. Najibullah is going to be the man that's going to try and upset their plans. Yeah, no more run-outs for sure. They just got to play a few stable overs. If they get a bad ball, okay, get a 4 or 6 on it, but don't take unnecessary chances to get those runs which are just not there. So it's important that they preserve their wickets right now. I mean, it might sound like a test match, but this is what it is right now. Yeah, they don't need to take unnecessary risks because they're going to get the odd ball they can put away. The bowling attack is a little bit inexperienced, so you would expect that the odd delivery that experienced players can recognise and put away, not necessarily for 4, but certainly just to keep that scoreboard ticking over. Bit of a breeze out there. Nice shot. Nicely played by Masood. Just the 2. Yeah, he timed it nicely. And he's a very sensible batsman, Shan Masood. He's captaining today, so he's got loads of responsibility on his head, his shoulders. And wickets fallen unnecessarily, that of Sharjeel. So he'll now have to bat with a lot of sense out there. But when the bad ball will come, they'll definitely have to dispatch it, not get into any kind of shackles. Good shot, beautiful shot. Outfield's fast, that's going to go for 4. Nicely played by the skipper. Yeah, just like that. Bad ball, hit it, get 4 runs. Beautifully driven. Nicely done. Good balance. Hitting the gap and getting 4 runs. And importantly, driving that on the up as well, which is a good indication that the surface is good to bat on. Yeah, nothing wrong with the surface, I think. I mean, Balochistan were all cluttered, and that's why they haven't scored. Using that one on the leg side. See that shot of Sharjeel still sitting with the pads on. 339 runs at just the 100. But 339 runs is heavy. So that shows how important he's been in the crusade for them. Have a look at him in the non-strikers there. And then he looks at his partner again. Then suddenly he says, oh, I've got to get back. And he didn't have a chance. Just a walk, a couple of paces for a walk, and then the stretch wasn't long enough. Just too nonchalant. I mean, you're playing a very important match. You can't be so casual, nonchalant, easy. I mean, they've got to work on these things. These are important things, basics. Just want to look at one other thing here. Maybe he was unsure about the calls from Mansoor. That's why he looked again. Maybe there was no call there. The slight misfield. Maybe that was the other thing. He still should have realised he had to leave himself enough time to get back because the fact that it was stopped. That's the important thing about it. Ahmed did the hard work and saved the runs. Great throw from Ahmed. Yeah, you can't saunter around. You have to be in your crease. You have to go back quickly. I mean, certainly there was confusion, but they played enough to know that they got to quickly go back. Now that is the end of the second over. 10 for 1.
Lovely shot of the mosque just behind the ground. This is the last. It's the run out, actually. Now, a little bit of decision. Maybe the calling wasn't quite as loud as it could have been, or clear enough. That's a loud scream from Mansour this time of no. But I did pick up something from the last ball of the last over. Listen to this call. No, that wasn't the last ball. He actually hit one on the covers, I think, and just or hit one, and instead of saying yes, he said run, run, run. I mean, the calls should be yes, no, or wait. It's simple as that. You shouldn't be calling anything else other than that in my book, because I think anything other than that can cause some confusion. This might have provided some confusion, not sure. Down the ground, that's a lovely shot. Lovely straight drive for 4. Beautiful shot. Over pitched. And so nicely played. Nicely, full face of the bat. No power, just timing. Wow, what a shot. Right, let's have a look at that last ball now from the last over. Listen to the call. So there's confusion there for me. If you're a non-striker, is he saying one or is he saying run? And maybe Shazil was thinking one or run, I don't know. No, I think he definitely said 1-1-1. And 3 times. He didn't say one, run, run, run. No, you he sure? didn't. Yep, absolutely. I think there's a song there somewhere, Lena. Definitely. That's away. That's a good shot. So this is now developing into a very good over. Junaid has had his problem. For some reason, he just hasn't been able to control the run scoring throughout this edition of the National T20 Cup. A couple of short deliveries at his pace. Not going to be too threatening at the moment. One stage he was going at over 11. He chopped that down to about 9.5, but someone of his stature should be able to get it under that. And also I'm just going to add the rider, that he does hard work at the end as well, so sometimes those numbers can be a bit skewed. It's a slower delivery. It's another 1-1-1-1 or run, run, run. Durara. 3 overs gone, 19 for 1. So just a reminder to create an account at shop.pcb.com.pk and order through the official PCB merchandise store now. Grab a shirt and get a chance to win a Pakistan cricket team T20 World Cup 21 shirts signed by the Pakistan squad. Deadline is the 15th of October 21. 5 lucky winners will be announced through the PCB official portals following the campaign end. Hashtag wear your passion. Right, 3 overs gone, 19 for 1.
Under 100 required now. 95 it is. That's what Sindh require. It'll be interesting to see if the Balochistan spinners get the same kind of help that the Sindh spinners were getting. Abrar in particular. And even Danish Aziz was getting a lot of help. But they're flighting the ball, trying to get the ball to spin a little bit, flighting it, giving it more air. Let's see what these guys do, the Balochistan spinners. Right, let's see what spin can do. Cries of catch it, and he said it's straight to the man in the covers. That's why they're smiling. Mansoor cannot believe that. He has to go, though, I'm afraid. Yeah, the spinners straight away coming to the party. Not flighting it that much, but still managing to get a wicket. Caught in the cover, faulty shot. You got to go. And now I think about your next innings. Good bowling. I tell you what, they might have to get a tractor out there to drag him off, because he's only just left the pitch area. We've got another delivery coming shortly in this over. Anyway, Mansoor goes for 11, 19 for 2. He is distraught. At the same time, Balochistan was 17 for none. GFF Sindh 19 for 2. Mohammad Taha now in the middle. Gee, these teams are making me think they're playing at some spin-friendly wicket, which is like a minefield turning square. And there's nothing like that. Keeper quite likes that. It's just a bit of a half-hearted shout, though, from him in the end. So Hale is having a bit of a chat to the keeper to see if there's any conviction in it. We'll have to see what happens with the third umpire, the TV umpire, getting involved with this decision pending. Oh, close thing, but I think he just might be back. Just might be. Close thing. Good hands by the keeper. Good stumping. Ooh. That's a close thing, Hazy. He's got long spikes. I won't put my head on the chopping block tonight. No way. This is going to be interesting. We're going to need a few views of this. So I just wonder if he's got a little bit behind the line by the time the bails come out of the grooves. That might be the saving grace for him. Let's have a look and see what the decision is. Not out to the call. A little bit close for comfort, though, it's got to be said. Upon just arriving.
few wickets gone, not much on the board. I'd like to see these youngsters then responding to pressure, like Taha, get a few runs here, show a bit of character. That'll be so pleasing for all of us. He's found the gap, so he's got off the mark. Just the one, though. Now the captain's going to need to take control a little bit here, just make sure things go along smoothly as far as one of the qualifiers are concerned. Aziz has got the skins on. He's due to come in next. And that is a magnificent first over. A wicket and just the one run. 4 gone, 20 for 2. दोनों ओपनर्स आउट हो गए हैं और अब जीएफएस सिंध ने उसी अंदाज में ही अपनी इनिंग्स शुरू की है जिस तरह खत्म की थी बलूचिस्तान ने। थर्डमैन की तरफ खेलने में कामयाब हुए, दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं, पहुंच गए अपनी क्रीज में ताहा। यहाँ पिच को तो हम मरीना दोष नहीं दे सकते। आज जिस तरह से दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने यहाँ पर खराब कारकर्दगी पेश की है बैटिंग के शोबे में। आज घास तो मौजूद था, बॉलर्स को थोड़ा फायदा हुआ है, स्पिनर्स ने भी फायदा उठाया, लेकिन ऐसा नहीं था कि बैटिंग साइड पे कोई इशू होता। जो शॉट्स हमें देखने को मिली हैं वो उस पर बासानी इन्होंने टाइम किया बॉल को, थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए और शॉट सिलेक्शन में कहूँगी यहाँ पे, वहां पे इन्होंने ज्यादा गलती की है। इस वक्त तबादला कर रहे हैं एक फील्डर का, मिड विकेट से मोहसिन को अब कवर पॉइंट पर लाया गया है। ऑन साइड में 3 फील्डर रह गए, मिड ऑन और फाइन लेग दायरे में। लेकिन अहम बात यह कि विकेटें सिर्फ 7 ही गिरी हैं इस मैच में। ये जे डॉट सुपर ओवर, इसमें विकेट जरूर गिरेगी और ये आप देख सकते हैं। तो विकेट सिर्फ 7 गिरी हैं इस मैच में, लेकिन रन्स बनाने की वो जो कार्रवाई है वो खासी सुस्त रही है। स्पिनर्स ने आज सिंध के स्पिनर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे की है। इब्रार से पहले भी बात हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा कि अंदाजा हो गया था कि ग्रिप हो रहा है बॉल। अच्छी डिलीवरी इस बार छोड़ती चली गई लेफ्ट हैंडर को। अच्छा मुकाबला है आज बॉलर और बैटर्स का। आज कुछ बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही है, पहले तो बैटर्स की मौज थी। अब्दुल्ला शफीक जो हैं इस वक्त गली में खड़े हुए हैं और ये उम्मीदों का सूरज जो है ये बड़ी जल्दी डूब सकता है अगर सिंध के लिए एक भी पार्टनरशिप हो गई तो फील्डिंग टीम के लिए। खूबसूरती से खेला, 4 रन्स ऑफ स्टंप के, बहुत बाहर गेंद थी, जोरदार वार किया ताहा ने। फील्ड इन्होंने ऐसी ही रखी हुई थी, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इस तरह की पिचेस पे यहाँ कंटेन करना। बहुत बार बॉल दे दिया था, स्टैंडिंग टॉल एंड अप एंड ओवर जो शॉट कहते हैं वो खेला इन्होंने बहुत कंट्रोल के साथ, अच्छी कलाइयों का इस्तेमाल किया। इस तरह की फील्ड मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है। आउटसाइड ऑफ स्टंप यहाँ कंटेन करना मुश्किल है, गली भी रखी हुई है, लेकिन फिर भी ऑफ स्टंप या 4th स्टंप से बाहर नहीं गेंद कराना चाहिए। देखिए इनकी जो लेंथ है ज़्यादा ये हार्ड लेंथ को ही हिट करते हैं, तो
फिर ये जो कवर के फील्डर हैं ये इनको हटा भी सकते हैं। आप बैट्समैन को यहाँ पर न्योता दे सकते हैं कि वो ऑन द ऑफ खेलने के लिए जाएं। इसी लाइन की मैं बात कर रही थी जो उमैद आसिफ ने अब कराई है। ये वो लाइन है जहाँ पे गली लग सकती है और वहाँ पे आपको इतना खुला शॉट नहीं पड़ेगा। लेंथ इसकी ठीक है, इनकी ठीक है, लेकिन लाइन पिछली बार जो चौका खाया वहाँ लाइन पे गलती कर गए थे। अच्छी फील्डिंग, इस बार रन बनाने का मौका नहीं मिल सका। 5 ओवर के बाद सिंध ने बनाए हैं 26। उन्नीस पर 2 विकेटें गिरी थी। उसके बाद से शान मसूद पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, जो आज टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। पहले हाफ में तो इन्होंने अपने वसाइल का अच्छा इस्तेमाल किया। लेग साइड गेंद को ऑफ साइड में खेलने के लिए चले गए। स्पिनर के लिए एक आजमाइश होती है शान मसूद को बॉलिंग करना, क्योंकि ये बड़े आसानी के साथ छक्के लगाते हैं। कई बार खड़े होकर भी सामने छक्का लगा देते हैं। ये भी गेंद को बहुत करीब खेलते हैं अपने बॉडी से, इसलिए बहुत कंट्रोल है इनको, अबूर हासिल है अपनी बैटिंग स्ट्रोक्स के ऊपर। देखिए शाम के साए इस वक्त गहरे होते जा रहे हैं। ताहा अब तक ज्यादातर ऑफ साइड में ही खेलते हुए नजर आए। जरा सा पीछे हटते हैं, रूम क्रिएट करते हैं। तो ये इनके लिए ज्यादा बेहतर लाइन हो सकती है। ये जो लेग स्टंप की लाइन है, खासतौर पर जब 4 फील्डर लिए हुए हैं ऑन साइड में। लेकिन यहाँ जब जब इनको गेंद मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहसिन गेंद रोकने से कासिर रहे। अच्छा स्ट्रोक खेला, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को फोर्स किया। प्लेसमेंट भी उम्दा थी ताहा की। दिल का स्ट्रोक था ये, थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आया, उसके बाद लेंथ रीड करके रूम दिया, बैकफुट पे गए और बिल्कुल अपनी नजरों के नीचे शॉट खेला। और ऐसा फुटवर्क जो है वो बहुत रिफ्लेक्ट करता है कि किस टाइप के बैट्समैन है ये। और काफी आगे निकल गए थे। आज कई खिलाड़ियों को हमने रन आउट होते हुए देखा है। इस इनिंग्स में शर्जील आउट हुए थे, लेकिन ताहा आ गए वापस। सिर्फ 5 रन इस ओवर से बने, 31 पर 2। अगर 6 ओवर्स के बाद दोनों टीमों को देखा जाए तो बलोचिस्तान की पोजीशन ज़्यादा बेहतर थी। अब्दुल्ला शफीक और पंगल जई खेल रहे थे, लेकिन पावर प्ले के बाद बिल्कुल सूरत हाल बदल कर रह गई। इस शफक का टुकड़ा इस वक्त लग चुका है, सुनहरी रोशनी फैलती जा रही है। अच्छा मंजर होता है यहाँ कज़ाफी स्टेडियम से भी गुरूब आफ्ताब को देखने का। और ये परिंदों के भी कुछ देर के बाद वापस आशियानों में जाने का वक्त होगा। तो यहाँ कई टीमों के भी अब वापस जाने का वक्त हो चला है, कूच करने का इस टूर्नामेंट से। बिल्कुल ऐसा ही है।
और अभी फिलहाल बलूचिस्तान की उम्मीदें कायम जरूर है। जस्ट फॉर मेन स्कैन कीजिए QR कोड और इनामात पाइए। और आगे गिरी हुई गेंदों को भी कई बार बैकफुट पर खेलते हैं, ताहम इस बार भी उन्होंने यही करने की कोशिश की। ये गेंद को सही तरह फील्ड नहीं कर सके यहाँ पर। रन्स की जरूरत है इन्हें और अब थोड़ा सा एक प्लानिंग नजर आ रही है ताहा और मसूद के दरमियान। कामयाब हुए थर्ड मैन की तरफ से ये चौका हासिल करने में। अच्छी सीम पोजीशन थी और कट करना चाह रहे थे लेकिन थिक एज लगा इनका। जहां ये गए थे नजीबुल्लाह गेंद के पीछे और गेंद अभी तक इनके हाथ में है। जी हाँ, लगता है कि है। और ये 4 रन्स हो जाने चाहिए। टीवी अंपायर जो है अभी उनका फैसला आएगा। लगता है कि गेंद जो है उससे इन्होंने छुटकारा हासिल नहीं किया था जब इनका घुटना लगाया जाकर। अब ये देखिए, लग रहा है कि इनके कांटेक्ट में है गेंद अभी तक। शोजेब रजा टीवी अंपायर ये देख रहे हैं मंजर, तो यही फैसला करना है कि जिस वक्त इस सामने इनका घुटना लग रहा है क्या गेंद राब्ते में थी। और अगर ये इस एंगल से लग रहा है कि शायद बचाने में तौलिए को तो नहीं लग रही थी, तो इस सूरत में भी ये 4 रन से होंगे। अगर ये तौलिए को भी लग रही है, लेकिन मुतमईन है फील्ड अंपायर भी और टीवी अंपायर ने भी उन्हें मुत्तला कर दिया। ये शोजेब रजा जो कि आज के तीसरे अंपायर हैं, उनके साथ प्रोफेसर जावेद मैच रेफरी। थोड़ा सा रूम देख के शान मसूद ने ये शॉट खेली थी। थोड़ा सा इन्हें यहाँ पे सिंध को ये नजर डालनी पड़ेगी अगर ये चाहते हैं कि टेबल टॉपर्स बने, तो जो हदफ है उसको कम से कम 16 ओवर्स में पूरा करना होगा। दूसरी जानिब खेलने में कामयाब हुए, विकेट के दूसरे रन के लिए इत्मीनान के साथ वापस आएंगे। शर्जील पे काफी इन्हिसार करता है सिंध, और आज जिस तरह वो रन आउट हुए वो भी थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम के लिए एक डिमोटिवेशन थी। उसके बाद खुरम मंजूर भी नहीं क्लिक कर पाए। ऑफ साइड के स्वीपर आएंगे मोहम्मद मोहसिन इस वक्त प्ले में, और आज वो दिन रहा है कि बॉलर्स का पलड़ा भारी रहा है। दोनों ही टीमों ने नए नए कॉम्बिनेशंस भी अपनाए, उस वजह से भी बैटिंग है क्लिक नहीं कर सकी। शान मसूद अलबत्ता अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, ये अच्छी खबर है सिंध के लिए। ये खासा है, थोड़ा सा पिच से दूर रह गए, लेकिन इनके हाथ अच्छे चलते हैं। उसी की बदौलत ड्राइव करके 1 रन बनाया। ये महंगा ओवर था इब्राहिम का, 40 पे 2। ग्यारह अक्टूबर 2021 का सूरज अब बिल्कुल अपने डूब जाने पे है। शामें बेहतर हो गई हैं। लाहौर में यही खासा रहा है हमेशा से लाहौर का, यहाँ की शाम सहर, रावी, रक्स, ये लाहौर की एक खूबी रही है, कशिश है लाहौर में।
काशिफ भट्टी वापस आ गए हैं बॉलिंग करने के लिए। स्पिनर्स ने आज के मैच में अपना सही किरदार अदा किया है। विकेट से हेल्प भी मिल रही थी और सही एरियाज भी पिक किए, लेकिन ताहा और मसूद दोनों स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं। अच्छा फुटवर्क है इनका, तेज फुटवर्क। गेंद लगी ग्लव पर और ये अच्छा कैच लिया हिदायतुल्लाह ने। अंपायर राशिद ने नॉट आउट करार दिया और साथ ही आगाह भी किया कि बहुत ज्यादा शोर नहीं बचना चाहिए, शायद उन्हें पसंद नहीं है। यार लगा ऐसे था जैसे गेंद इनके ग्लव को लगती हुई गई है, इनकी कलाई के बहुत करीब थी। ये अच्छी बैटिंग है, अगर नहीं लेंथ मिली तो जबरदस्ती शॉट पे कमिट ना हो। एक बार फिर अपील पे नजर डालते हैं। और इस बार सामने खेलने में कामयाब हुए, अच्छी हिट लगाई ताहा ने, इससे इनके एतमाद में इजाफा होगा। इस बार काशिफ भट्टी ने ज्यादा एयर दी थी, आगे पिच कर दिया और इंतजार करके मारा है ताहा ने। एफर्टलेस जिसे कहते हैं, उनके आंख में आ गई थी गेंद। सबसे सेफ एरिया जो कि सीधा होता है, वहां से बाउंड्री हासिल की है। ये पहुंच गया अपनी क्रीज में या नहीं, देखिए दूसरे रन के लिए भी वापस आ गए हैं। ओवरथ्रो का रन जरूर हासिल किया है, लेकिन ये काउंट उसी सूरत में होगा अगर ये पहले रन के लिए पहुंचे, क्योंकि एक आवाज आई है कि ये बहुत बड़ा आउट है। फील्ड से बलूचिस्तान के खिलाड़ियों का यही कहना है, लेकिन नहीं पहुंच गए थे। एक लम्हे के लिए लगा था क्योंकि बैकफुट पे शॉट खेली थी और एक आधा यार्ड ज्यादा आपको कवर करना पड़ता है, लेकिन बच गए इस बार। अच्छी रनिंग थी, अच्छा सिंगल जुराया इस बार। अगर ये 16 ओवर्स या उससे कम में कामयाबी हासिल करते हैं सिंध की टीम, तो फिर ये पहले नंबर पर आ जाएंगे। अभी रन बनाने की औसत 5.5 है, 47 पर 2। Come on, right. Ibrahima, port se fresh da. 67 of 72 deliveries. Off spin being pumped into the offside. Great timing. Shan Masood with a quality extra cover drive. Just made sure that he had enough room to swing the bat. And the timing was there, brought up the 50 as well, but maneuvering his feet so that he could execute the shot. Shan Masood playing well, realizing his responsibility as a captain. Few wickets lost, one unnecessarily totally. So he's now got to stay here and take his team to victory, and also guide the youngsters playing next to him. What's the rules, Ishan?
A massive appeal. Taha, is that nicked the wristband or not? It just seems as if maybe it has done that. And that is part of the glove. If he had no wristband, he was fine. But if there's a wristband, that does constitute part of the glove. So if it kisses that, you're out. I think Taha said it hits it bicep. I don't think it traveled that far. It's gone. Shan Masood, well, he traveled too far down the wicket. Big turn, and he's missed it by quite a distance. Well, this is what I was saying, not to lose your wicket now. You're the captain. Nicely bowled. Oh, some turn also, and beautifully stumped. Great work. Not so good by Shan Masood, not floating my boat. This kind of captaincy and this kind of batting. 53 for 3, 9 overs gone. Hassan Mohsin. All-rounder, very handy with the bat. But he'll have to contend with spin. Last delivery certainly went off the straight, went a long way, and Shan Masood ended up missing the ball by quite a distance. Easy stumping. This wicket's definitely turning a little bit, and if you're trying to turn it, it definitely will. Some are trying to flight it and turn it. Some even flatter deliveries are turning a little bit. So there's definitely some purchase for the spinners. Well, Mohammad Mohsin, leg spinner. That one straight on. On a pitch that's turning, the one that doesn't turn is quite a difficult one as well. Just went on with the angle and just went straight on. Batsmen from the subcontinent is supposed to play spin better than you know, from the other parts of the world, but this pitch definitely causing some problems, Bazid. Balls turning and some deliveries not turning, like you said. So the required rate is 5.71. That seems under control. But with the spin options, Kashif Bhatti has an over remaining. Ibrahim has 2 overs remaining. Mohammad Mohsin has just started his spell, so the way back for Balochistan is through spin. Googly picked. Nicely just lapped around the corner, used the pace. Lovely shot. Mohsin, the new batsman, read this early, the googly, and played a nice sweep shot for 4 runs. Nicely done. Done well that time.
59 for 3. Broadcasters, television and streaming, if you want to stream this game, you jump onto PCB YouTube channel or PCB Facebook page. High definition, crisp pictures. Ibrahim now just going over the wicket. So today's game, the fast bowlers are going at 7 runs per over. This is whole of today's game. That is before this delivery, those stats. And the spinners are going at 4.33. And they've taken 5 wickets as compared to 1 from pace. So it's all about spin. So you look at Kashipati, Ibrahim and Mohsin. There's a bit of sloppy cricket, you could say, in this game. Dropped his bat and would have been out. If that had struck the stump, that would have been another way to get out. Would have been tragic to lose your wicket like this. Taha's playing well. I like this, reading the situation well, trying to counter the spinners, stay on the wicket because the target is not that much. Thank God for small mercies. So if he stays there, he can still win his team a match. Flicked in the air, man camping underneath it. It's Iron Man who takes the catch. And another one for spin. Remember the song, Another One Bites the Dust? So this is what's happening here. Spinners taking more wickets. And batsmen not reading the situation. I mean, just take singles and doubles. No need to loft the ball in the air. Hassan Mohsin out for 6, 61 for 4. Mohammad Afzal to the crease. And it's all about the slower bowlers today. Nice turn, appreciable turn. Tries to sweep that and gets almost the toe end. So the ball not coming onto the bat, is also gripping and spinning. It's a problem. 62 for 4.
5.78 is the run rate required, but 4 wickets down after 11 overs. And no batter so far has looked in against spin. Yeah, not easy to play when it's spinning so much, but you know, you can be sensible, just play, get the ones and twos, avoid the lofted shots, save your wicket for a little bit, and finally the opposition would the spinners, you know, how many spinners do they have? So just calculate that and, you know, play accordingly. Come back for 2. But Sohail Akhtar sensing that this is the moment that he can apply a bit of pressure. He's brought himself in to slip. The googly beats the outside edge. Sohail Akhtar in play. Yeah, that's a good move to have the slip. I'd even have another fielder close in, put more pressure. Over extra cover. Got the length and he's placed it beautifully. Lovely extra cover, inside out shot to finish the over. It's 70 for 4. Ibrahim, ball press dे, ball grip के. शाबाश शाबाश गाइस. 70 पे 4 और 12 ओवर्स का खेल हो गया. यहां सिंध भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं बलूचिस्तान की बैटिंग से. बाहर निकल के ऊंचा शॉट खेल दिया है, गैप में गिरेगी बॉल. 2 और हासिल हो जाएंगे उमैद आसिफ डीप में. ये इस खेल की, पूरे मैच की रफ्तार ही कुछ बिल्कुल स्लो रही है. आज लगता है बैट्समैन जो है वो फूड में नहीं. या मोहम्मद अफजल ये नए नए आए हैं. ये एक ज़माने में स्टेट बैंक के लिए खेला करते थे. आज विकेट कीपिंग की. बहुत अच्छे फील्डर भी हैं. विकेटों के दरमियान तेज़ दौड़ते हैं. और ज़रूरत है ऐसी पिच पर आपको दौड़ कर रन बनाना पड़ते हैं. आज अच्छा स्टंप किया था इन्होंने इब्राहिम को. अबरार अहमद की गेंद पर आज बड़ा टर्न नजर आया इब्राहिम की गेंद पे. जो शान मसूद आउट हुए वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी. बड़ा हैरान किया. गेंद की पिच पर पहुंचे थे शान, लेकिन इतना बड़ा टर्न जब मिल जाता है तो फिर आप ऑब्वियसली बीट हो जाते हैं. कुछ सॉफ्ट डिसमिसेस रही. खुर्रम मंजूर सीधा कब्ज में गेंद फील्डर को दे बैठे. कुछ गेम अवेयरनेस की बात है. शर्जील रनआउट हो गए जहां कोई चांस ही नहीं था विकेट देने का. सिकंदर आज छठा दिन है और यहाँ पर ये 11वां मैच खेला जा रहा है इस स्क्वायर पर. तो ये तो मुतवक्के था. और पिछले कुछ बरस से हम देख भी रहे हैं कज़ाफी स्टेडियम में स्पिनर्स गेंद करते हुए महसूस होते हैं हर तर्ज की क्रिकेट में. और खूबसूरती से खेला. ये ओवर पिच गेंद थी लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग भी. बाउंड्री पर जुनेद खान सिर्फ एक ही रन बन सका. 43 गेंदों में 39 रन की जरूरत है. अभी भी बलूचिस्तान की टीम इस मुकाबले से बाहर नहीं है. अगर विकेट लेते हैं यहाँ पर खास तौर पर ताहा की तो मुश्किल हो सकती है.
लेकिन उनके सामने सिंध के ऐसे बैटर्स हैं जो स्पिन को अच्छा खेलने की शोहरत रखते हैं। अच्छा फुटवर्क अफजल का 76 पर 4। ये पॉइंट्स टेबल हैं और हमारे स्टेटिस्टिशियन कहते हैं अगर 16.2 ओवर में चेस कर लेता है जीएफएस सिंध ये रन तो टॉप पे आ जाएगा और यहाँ पे रह सकता है। अगला मैच नॉर्दर्न और खैबर पख्तूनख्वा का है, बड़े मार्जिन से जीतना होगा खैबर पख्तूनख्वा को कि वो अपना 0.37 रन रेट जो है 4.8 से ऊपर ले जाए। तो या तो अगर 16.2 ओवर में चेस करते हैं कुछ देर के लिए टॉप पे रहेंगे या वहाँ कायम रह सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप नंबर 1 पे फिनिश करते हैं तो आप दोपहर का मैच खेलेंगे, आपके साथ ड्यू और आपका ऑपोजिशन 2 जो हैं फरीक नहीं होंगे। तो ये टीम्स यही चाहेंगी क्योंकि नंबर 1 नंबर 4 से खेलेगा और दोपहर को खेलें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना टॉस पे बड़ा डिपेंड करना पड़ता है। 2 और 3 रात को खेलेंगे। आप कब खेलना पसंद करते हैं, दोपहर को या रात को? देखिए आपको गेंद तो ज्यादा बेहतर नजर दोपहर को ही आती है। लाइट्स बड़ी अच्छी हैं यहाँ पर, बिल्कुल मेरे ख्याल में तो दोनों मैचेस में गेंद अच्छी नजर आती है। लेकिन जाहिर है कि आपको ये शबीना मैचेस हैं उनमें ये फायदा होता है कि गेंद ज़्यादा बेहतर बल्ले पर आती है, ओस की वजह से बैट्समैन महसूस होते हैं। यहाँ मौका था, गेंद तकरीबन हाथ लग चली थी मोहसिन के। लेकिन चले ठीक है, आपसे मैंने आपकी प्रेफरेंस पूछी थी, आपने कहा कि दिन का मैच। आई थिंक दोनों कप्तान भी यही चाहेंगे जो अगर फिनिश कर पाते हैं नंबर 1 पे कि दोपहर का मैच हो ताकि बोल्ड हो गए। बाउंस थोड़ा एक्स्ट्रा मिला, थोड़ा इनसाइड एज लगा और गेंद चली गई स्टंप्स पर। ये जीएफएस सिंध अपने साथ कोई फेवर्स नहीं कर रहा, इस तरह से विकेट्स गिर रही हैं इनकी। 78 पे 5वां खिलाड़ी आउट हो गया। जी हाँ, ये गुगली थी, गेंद बड़ी तेज से स्पिन होती है, इनकी लेग स्पिन से भी ज्यादा गुगली। मोहसिन इसी की शोहरत रखते हैं। यहाँ उन्होंने विकेट हासिल की, बिल्कुल भी रीड नहीं किया अफजल ने। उनने बनाए 9 गेंदों में 9, 78 पे 5 सिंध। दानिश अजीज एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अगर दानिश अजीज यहां गेम फिनिश नहीं कर पाते तो उनको अपने आप से बहुत सारे सवालात करने पड़ेंगे। यहाँ भी ये अबू धाबी जाकर बहुत अच्छा खेले थे पाकिस्तान सुपर लीग में। ये टपाल टी मोमेंट है, वहाँ इन्होंने बड़ी तेज से निस्फ सेंचुरी बनाई थी कराची किंग्स के लिए खेलते हुए, लेकिन इस सीजन में ये बैटिंग में चल नहीं सके। पहली ये गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंच गई, ये वाइड के 5 रन करार दिए जाएंगे। इससे सिंध का काम ज्यादा आसान हो जाएगा। ये वो विकेट है, तेज गुगली पड़ने के बाद ज्यादा बाउंस हुई। देखिए कट करने के लिए गए थे, बिल्कुल भी ये हाथ से रीड नहीं कर सके।
ये दानिश अजीज़ हूँ या आज़म खान हूँ। आज़म खान तो अब सदर्न पंजाब के लिए चले गए हैं। पिछले सीज़न में वो सिंध के साथ थे मिडिल ऑर्डर में। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन की क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है ताकि लंबी इनिंग्स जो खेलने का आर्ट है एक तो वो आए। मुख्तलिफ तरह के बॉलर्स को मुख्तलिफ हालात में किस तरह से निपटना है। टैलेंट है इनमें और इसमें कोई शुबा नहीं है। ये आगे चलकर बहुत काम आ सकते हैं पाकिस्तान के। 84 पे 5। ये तो जुदा ही रहेंगे। दोनों परफॉर्मेंसेस ऐसी रही हैं। अब आप देखिए यहाँ पर बलूचिस्तान शुरू से ग्राफ नीचे ही जा रहा है, ज़्यादा ऊपर आया ही नहीं किसी मौके पे। जीएफएस सिंध भी स्टार्ट अच्छा लिया लेकिन इनका भी सिलसिला ऐसे ही चल रहा है ऊपर और नीचे क्योंकि विकेट्स गिरते जा रहे हैं जो डॉट्स हैं। कल की अगर मैच से थोड़ा सा हम सीख लेना चाहें तो कल फ़हीम अशरफ जब आए उन्होंने आके 3 गेंदों में 14 रन स्कोर किए। वहाब रियाज आए, उन्होंने 4 छक्के लगाए और सिचुएशन को एकदम जो है वो सीपी के फेवर में मोड़ दिया। ये थोड़ा समझ से बाहर है। 29 रन चाहिए, 35 गेंदें। क्यों हर बैट्समैन ऐसा सोच रहा है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है? क्वालिफाई भी किए हुए हैं, थोड़ा अपने आप को बैक करें। ये नहीं कह रहे कि हम छक्के लगाएं। ये आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है इस पिच में जो बहुत ही मुश्किल है बैट्समैन के लिए। नहीं, परचेज से मिल रहा है स्पिनर्स को, इसमें तो बिल्कुल भी कलाम नहीं है। लेकिन जाहिर है कि डेड बल्ले के साथ आप खेल नहीं सकते। आजकल आप 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हो या T20, आप डेड बल्ले के साथ नहीं खेल सकते। वो दौर जो है वो खत्म हो गया। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये सिचुएशंस बहुत खुशनसीब जो होते हैं ना उनको मिलती हैं। अगर ताहा यहाँ हैं, दानिश हैं, पता है कि सीनियर मेंबर्स आउट हो गए हैं तो आप कैश आउट करें, इस मैच को जितवाएं। ऐसी परफॉर्मेंसेस चाहे छोटी क्यों ना हो, 20 रन की आपको 11 में जगह दिलवा देती है। आपके कोच भी यही सोचेंगे कि अगर फाइनल में ऐसी सिचुएशन आई तो ये जाके लड़के निकाल देगा टीम को। लेकिन अगर आप इसको 18वें 19वें ओवर तक ले जाएंगे, ये थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच होगी। काफी लो आर्म के साथ ऑफ स्पिन कर रहे हैं दोनों लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ। अच्छा रहा है हरबा ये सुहेल अख्तर का। उन्होंने सिर्फ 2 ही रन दिए इस ओवर में। 15 के बाद 86 पे 5। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जैसे चार्ज किया, फोर्स किया बॉलर को, लेंथ चेंज करे, कुछ अलग करें। 87, 5 खिलाड़ी आउट। खाने पीने की इसके लिए लाहौर में आपको किसी जगह कोई कमी नहीं लगेगी। ख़ास तौर पर अगर आप शहर के बस में जाएंगे लक्ष्मी चौक के इलाके की तरफ, तो समोसे, मिठाइयाँ, लज्जतें आपकी मुंतज़िर होंगी। ये बना क्या रहे हैं इसको कुचल के? समोसा टाइम है।
इनको सीट में असर नहीं। आप बात कर रहे थे कि दोनों और रन आउट हो सकता है यहां पर, लेकिन गेंद बड़ी देर पहुंची बॉलर के पास, फील्डर के पास। सिकंदर, आपने कहा कि मैच जो है ये बहुत सुस्त चला है, तो मुझे इस मैच की जो रफ्तार है, ये देखिए उलझ गए थे बॉलर, इसकी रफ्तार जो है वो इस्लामाबाद F8 की जो एलिवेटर्स थी, ये उनकी याद आ जाती है, जो जिना एवेन्यू में अभी 2 हफ्ते पहले जो तजुर्बा हुआ। इस मैच की रफ्तार वैसी ही है। बानवे पे 5। (22 of 24). Same stage, by the way. Balochistan were 77 for 3. So there's a nice little break here for Sindh. It looked for a while there that no one wanted to win this game, it must be said. But the spinners have made some impact, that's for sure, and that's going to interest the teams going to be playing second here, because the track is going to help them. And there's a couple of high-quality spinners on show as well. Afridi's going to be one of them for Khyber Pakhtunkhwa. It is them versus Northern, and that's coming up on air at 7:15 local time. And that's going to be interesting to see what happens with that one, also with the juggling for positions, to see where teams end up in the semi-finals. 1 versus 4 it's going to be, and 2 versus 3. Right, 22 required in 24 balls. 5 wickets in hands for GFS Sindh. Aziz has been there for a short while. Tara has been there for 42 balls for his 38. And Junaid is back into the attack, which will probably please the batsman, I'd imagine. Quite happy to get out of the firing line of the spinners spinning a web all the time. Yeah, pace back on, and that'll probably be easier on this particular track. There's a lot of turn for the spinners. But it is certainly going to make the batsmen, and I presume the two teams involved in the second game have been watching this game quite closely. I presume that they'll be making some plans already, because they're going to have to change their batting style a little bit as to how to play in the second game, because the way the track's played and the way the spinners have been so effective compared to the other games where it's just been sliding onto the bat nicely. They never admit to watching the game. You ask them, is the first game has any bearing on whatever you decided the toss? They say no. If you watch the first game, there was a lot of runs, 200 scored or whatever, a lot of spin. And they said, no, we have our own plans. We don't really look at other teams or other games. So always the same answer. Well, they'll be in trouble today if that is the case. What was that? There was a game earlier where I can't remember the exact score. Hassan Ali was the captain, and having the toss with you.
I think it was like almost 200 each, perhaps even more. Each team that batted first in the first game, and you asked him about the. No, it was the game before. It was 200 plus, 200 versus 200 plus the night before. And you asked him, I'll get this right in a sec. I think it was about the. Got it now. It was the toss for the second game, and a big scoring game just beforehand. That's nice and fine, and that's gone for 4 runs. So they can do with these boundaries, just chipping in occasionally. I'll continue my story in a sec. The movement was very late. He'd obviously decided beforehand, but he made sure that he left it at the very last second so that there was no indication for Junaid Khan to change his length. That's beautifully played. Really quality ramp shot. That's picked up, but not totally all the way. On the bounce, they're going to take advantage of that and come back for the second. So at the toss, he said to you, as you can see, what happens. It was a toss before the second game. As you can see, what happens with the games as they go on, as they slow down throughout the pitches slow down throughout the day. Meanwhile, the game before was 220 versus 220 or something of the like. So clearly, wasn't watching that game. So he judged the decision solely on the track slowing down. And so pace on, and suddenly it's 9 of the first 5 deliveries. This man hold his over for just 2, and he's gone back to pace. It is difficult to trust your spinners at the back end. Most captains want the experienced fast bowlers to come and close the innings off, but I just think that this track, with the turn on offer, you have to stick with the spinners for longer. Couldn't agree more. That should have been the plan. Suddenly it's a breakaway over where 9 runs are scored, and now it's 101 for 5. Things are more comfortable. So Kashif Bhatti has an over remaining. Sohail Akhtar himself just bowled the 1 over with 4 dots, went for 2. And in a game where you've got about 9 to 12 overs of spin, you just maybe trust yourself and bowl them a couple more. Make sure that the game goes deeper. Now is Taj Wali, left arm pace. To bowl his first over. So again, it probably accentuates your point. Also, the fact is that Balochistan should have got more runs on 113. They were so slow in the first 6 overs, the power play, and so slow at the 10 over mark as well. They were in no man's land at that stage. And their run rate rarely got above the 6 to the over mark. So it could have further complicated things also if they batted better. Sweeper in the outfield, just the single. So Taj Wali with his first over, again with the spinner operating now, perhaps with a bit of turn, with only a dozen runs required from this juncture. It might have been a little bit more challenging. Bit of a tough call for him to suddenly come into the attack and try and keep their scoring down to virtually 4 runs and over. That's going to be tough. It's a beautiful shot. Hit it really well. Just 1 though.
Squeezed away down to third. But you look at the scenario of the semi-finals, and yes, okay, if you finish first or second, or especially first, you play number 4. But then you look at the timings of the game, and if you want to avoid dew affecting your game, you either finish first or 4th. So 1 and 4 will play the day game, the earlier game, and so the effect of the dew won't really come in. In the second semi-final, yeah, there's be more emphasis on the toss because there will be dew formation. Well, if you're lucky, there won't be, but there's more chance of dew in the evening game rather than the first game. So if you're coming in at number 4, well, maybe that's to your advantage. Yeah, you want to play that one, no doubt. Then you can rely on the ability of your players without any outside influence. Full toss, that's going to go for 4. That got the gap. He was aiming for that. He opened the face a couple of times, hit the deep fielder this time. He just opened it at the correct moment and it squeezed past point, timed beautifully, so no chance for the deep fielder. Yeah, I thought halfway through this game that Sindh would have a bit of a dip at this and try and chase this down pretty quickly. So they got some good net run rate advantage out of this. It's only 6 to win now. So full toss. He's down the ground for a single. And that is the end of the 18th. 8 from it, 109 for 5. And just to repeat what was said earlier, if they chase this total down in 16.2 overs, they would have gone to top of the table. GFS Sindh. Obviously, we've still got another game to go. Obviously, if Northern win the second game, then that means they'll finish presumably second. If they had done that, we'd bump down. Right, 5 to win. Stands, it looks like they are easily going to, well, could well occupy that number 4 slot, which would then give them that day game. You don't want to be influenced by dew, I don't think, in a semi-final. Swing and a miss. They do need to play better than what they're playing at the moment, that's for sure. There hasn't been a very impressive display, actually, I don't think, with the bat or certainly the field. Yeah, the intensity in this game hasn't been there at all. Coach happy, he knows his team's qualified, but yeah, you don't want to repeat this process again in that semi-final. You want to keep ensuring that your team has good habits time and time again, and they repeat that every game, no matter what game you're playing in. So fielding has to improve. Intensity also, and shots like that will help. Lovely cover drive. Yeah, all on the carpet, that one. Wasn't that much wrong with the delivery. It was close to a Yorker. He just happened to dig it out, really. I think Ahmed got a bit of a shock that he managed to get it all the way to the fence. So just one required now.
Might as well bring all the players in. Almost all have come in to save the one suddenly. Now we've got a couple other guys just realizing that they need to come in. Clearly we're watching the captain, so in they come. Can he bowl 3 dot balls? There's a little mini challenge for him. That answer would be no. That's gone for 4, and that is victory to GFS Sindh. So it's a game they needed to win, of course. They would have liked to have played a little bit better than this, I'm sure. They'll sit down and just discuss this briefly, I suppose, and then work on a few aspects tomorrow. But Sindh win this one by 5 wickets over Balochistan, who have really had a tough time of it. Yeah, tournament to forget for Balochistan. They were close in a couple of games, but just couldn't finish them off. Happy dugout. Head coach pretty happy, satisfied with the performance, with the win. I don't think satisfied with the performance, but at the end of it all, GFS Sindh, courtesy that winning stroke from Danish Aziz through the covers, win the game in 18.4 overs and by 5 wickets. Right, the players make their way off now, and handshakes and greets as they go towards the dugout. We'll look back at the GFS Sindh batting card. Shazil missed out, run out, a bit of lazy running from him, but I guess one of the positive is that they didn't need him to score runs today to get a victory. 47 to Hart of 48 deliveries. And if you look at Balochistan's bowling, well, they had nothing to bowl at really, so it was going to be difficult for them. The spinners did a pretty tidy job. Kashif Bhatti 1 for 13 off his 3 overs, including 12 dot balls. And apart from that, they really didn't get too much going. Ibrahim 2 for 24 off 4 overs as well. Look at the match summary. Balochistan 113 for 5. That's all they posted. Akhtar with 37 not out of 36 deliveries. Bangazai 29. Abrar picked up 2 for 15. He got a little bit of turn and asked a few questions, that's for sure. Sindh in reply 117 for 5, and Sindh getting up by 5 wickets. That means that GFS Sindh for the moment are number 2. All 4 teams have qualified, 12 points, but there's still the matter of Northern, who can jump to number 1 if they win. So we'll have to watch and see what happens there with that second game to see how that juggles around. Okay, time for us to take a break. When we come back, we'll have the presentation.
इनामी तकरीब में खुश आमदीद। आज 29वां मैच खेला गया GFS सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान, जो सिंध ने 5 विकेटों से जीता। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी साजिद हुसैन का, जो होमेज अप्लायंसेस की जानिब से मौजूद हैं। अब होमेज अप्लायंसेस मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग प्लेयर की बारी है, जो कि हैं इब्रार अहमद। उन्होंने 2 विकेटें हासिल की 15 रन दे के। शानदार बॉलिंग की। वो अपना चेक वसूल करेंगे 15,000 का। अब मैं बुलाना चाहूँगी प्लेयर ऑफ द मैच, जो कि हैं मोहम्मद ताहा। उन्होंने 47 नॉट आउट स्कोर किया है। पहले वो बॉल साइन करेंगे ब्राइटो फैन ऑफ द मैच, और साथ अपनी पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी वसूल करेंगे और 25,000 का चेक। तो आपसे थोड़ी बात करेंगे। ज़बरदस्त इनिंग्स थी, अंडर प्रेशर भी था, टर्निंग विकेट थी। आज क्या आपका प्लान था जाते ही? सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि इतना अच्छी परफॉर्मेंस दी। शुरू में अर्ली ऑन जब मैच स्टार्ट हुआ था तो विकेट थोड़ा इतना बैट पे बॉल आ नहीं रहा था, तो इसी जहन में रखते हुए मैंने चीज़ों को देखा और बैटिंग में ये असेस किया कि एंड तक जाना है। जो मेरे कोचेस और बासित भाई और मसरूर भाई ने कहा, उसी फ्लो में मैं खेलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैच फिनिश किया। बीच में इस तरह बाउंड्रीज नहीं मिल रही थी, तो आपने कोई बॉलर्स को अटैक किया हुआ था स्पेसिफिक कि इनको अटैक करना है? जी, अटैक मैंने करने की कोशिश की, तो बीच में बॉल इतना अच्छा बैट पे आ नहीं रहा था, तो फिर मैंने अपने आप से यही बात की कि एंड तक जाऊँगा, जहाँ अगर हमें एवरेज ऊपर भी होती है तो अगर विकेट्स इन हैंड होंगी तो हम चेस बिल कर सकते हैं। चलें, ज़बरदस्त, ऑल द बेस्ट आगे। थैंक यू। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगी बलूचिस्तान के कैप्टन सोहेल अख्तर को। सोहेल, पहले आपको बैटिंग की ऑफ़र की गई थी, विकेट थोड़ा डिफरेंट था, उस टाइम क्या टारगेट आपके माइंड में रहा? हाँ जी, असेस कर लिया था कि जिस तरह के विकेट नज़र आ रहा था तो उस पर 125-30 काफ़ी अच्छा टारगेट था, लेकिन वही हम 10 से 15 रन शार्ट थे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत अच्छी फाइट हुई है। आपको लगता है बीच में मोमेंटम नहीं बन सका, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? सिंपल वजह तो यही थी कि विकेटें हमारी ऊपर नीचे गिरती रही हैं, जिसकी वजह से मोमेंटम मिल नहीं सका। और थोड़ा सा हमें बैड लक हुई कि हमारी इंजरीज 2-3 हो गई। उस वजह से अगर हमारे मेन बैटिंग होती तो मैं समझता हूँ कि 140-50 हम कर जाते। अप्स एंड डाउन्स रहे आपकी टीम में, लेकिन इस टूर्नामेंट से क्या पॉजिटिव पिक किया? अब पॉजिटिव अगर आप देखें तो हमारे ऑलमोस्ट सारे ही मैच क्लोज गए हैं, लास्ट तक गए हैं। और थोड़ा सा फिनिशिंग टच था, वो नहीं आ सका। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह हमारी टीम जेल थी और जिस तरह हार्ड वर्क कर रहे थे, और हर मैच ही ऑलमोस्ट हमारा लास्ट ओवर तक गया है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न के लिए अच्छी तैयारी से आएंगे। ऑल द बेस्ट आगे के लिए। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगी GFS सिंध के कैप्टन शान मसूद को। शान, फर्स्ट ऑफ ऑल मुबारक हो आपको सेमीफाइनल्स में आपकी आगे पोजीशन। इस मैच में क्या चीज़ बेहतर कर सकते थे? बेहतर इसमें पॉजिटिव्स भी हुए हैं, थोड़े से नेगेटिव्स भी। आई थिंक बैटिंग में थोड़ा क्लिनिकल होना होगा। अगर ये प्रेशर गेम होता, इस टाइप की विकेट होती, तो ऊपर से जो 2 आउट हुए फिर तीसरा भी आउट हुआ है, तो आई डोंट थिंक आपको लेट ऑर्डर के लिए वो करना चाहिए। टॉप 3 को जो क्रंच मैचेस होंगे उसमें स्टेप अप करना होगा। और फील्डिंग में भी 1-2 लैप्सेस थी, लेकिन आई थॉट कि बॉलिंग बहुत ही एक क्लिनिकल डिस्प्ले था फास्ट बॉलर्स स्पिनर्स का। और यही है कि एक अच्छी पोजीशन है। अब हम वी लुक फॉरवर्ड टू द सेमीफाइनल। थोड़ा सा आज टर्निंग विकेट था, कितना मुश्किल होता है कि पहले बैटिंग ट्रैक्स फ्लैट थे और एकदम एडजस्ट करना एट द मोमेंट? देखें, एज ए क्रिकेटर आपको एडजस्ट तो करना है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जिस डायरेक्शन में गेम जा रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट जा रही है, उसमें यू एक्सपेक्ट के हाई स्कोरिंग पिचेस होती हैं। आपकी जो स्किल लेवल होता है वो इसमें आपको स्किल लेवल चेंज करना होता है। इसमें आपको थोड़ा सा ग्राफ्ट करनी होती है इनिंग्स, थोड़ा स्वीप शॉट्स पे, थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स पे रिलाई करना होता है, और बड़ी हिट आप इतनी ईजिली नहीं मार सकते। तो यही चीज़ है कि जब क्वालिटी और प्रेशर मैच आता है तो आपको वो वाला स्किल सेट भी निकालना होगा, जो हम अब देखेंगे कल क्या कंडीशंस हैं, उस हिसाब से हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इनामी तकरीब से इतना ही। आज GFS सिंध ने ये मैच जीता। वापस चलते हैं कमेंटेटर्स के पास। Marina, thanks very much. Okay, let's have a look at what is coming up. Here we go. This is the second game, and it is going to be interesting to see what happens with this one. There's plenty to play for, of course. Khyber Pakhtunkhwa versus Northern.
And we're going to be on air at 7:15 local time, which is around about 50 minutes time. You can join us. And of course, the first ball at 7:30. Right. So it's going to be interesting to see what happens with that one. Thanks for being with us, the first one. We'll see you for that game, which should be an absolute beauty. We'll catch you then. अब्दुल्ला शफी का और कैच करने में कामयाब हो गए। बहुत थोड़ा एक्स्ट्रा मिला, गेंद चली गई स्टंप्स पे।